Assalamualaikum, Amna. Assalamualaikum, How are कैसे? you doing? I'm well. How are you? For the audience, we're joined here today by Amna Qadir. Amna Qadir ने एक इदारा बनाया है, शहर, and it's a play on words, she, her, शहर. I also thought it was she, her, by the way. But it's an institution for women, उनको legal aid provide करने के लिए and also उनकी lobbying और legislation में affect करने के लिए. Am I right? Yes. Ji. Amna Qadir, you're a Yale graduate and you studied global affairs and then you studied law at Cambridge. So like the pedigree is solid, guys. Like don't question me about the validity of whether or not you should be working on these things. So you started Sheher as a volunteer thing, but now आपको पंजाब गवर्नमेंट ने मौका दिया जेल रिफॉर्म के लिए. How do you go from women's rights to jail reform? Well, I think women's rights and jail reforms are all part of the same in the sense that we're working on the rights of vulnerable groups. तो जिन marginalized groups को आमतौर पे main legal system से access नहीं मिलती to representation, to access to justice. So our work at Sheher, where it pivots on vulnerable groups and women, but that's interlinked to all groups within the system that don't get justice. Within that, you also have, let's say, women prisoners, for example, who are sometimes subject to the most kind of deprivation and abuse. Pregnant women in jails, who have children in jails, and वो सालों तक बैठे रहते हैं because they're under trial and their trials are not processed. Right. So Amna, you're from Karachi and now you've permanently shifted to Lahore and you've decided to fix Punjab because Karachi and Sindh is pretty much fixed. Yeah, So it's doing great. एडजस्टमेंट पीरियड के एतबार से आपको लगा था कि फ़र्क है पंजाब में एंड इज़ देयर अ लॉट मोर वर्क टू बी डन, या डिड यू फील ज़्यादा रिसेप्टिव थे लोग यहाँ पे, एटलीस्ट जो शहर का काम था स्टार्ट में विच वाज प्राइमरीली एजुकेशन अवेयरनेस करना, डिड यू फील लाइक यहाँ पे ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस था या उतनी ही डिफ़िकल्टीज थी जिससे सिंध में आती हैं? आई एम जस्ट अ कंपैरिजन फॉर द ऑडियंस. सो एक्चुअली जब मैंने शहर बनाने का सोचा था, मैंने यही सोचा था कि आई विल डू इट इन लाहौर, क्योंकि सिंध में देयर इज़ लाइक अ पैरेलल सिस्टम. तो उन्होंने एक पैरेलल सिटीजन्स पुलिस लिएजन कमेटी बनाई हुई है क्योंकि द नॉर्मल सिस्टम डजंट वर्क. तो उन्होंने साथ एक सिटीजन्स का सिस्टम चलाया है ताकि वो सिटीजन्स खुद जस्टिस करें, लाइक नेबरहुड पुलिस कमिटीज सिटीजन्स करते हैं. In Punjab, I think that there is definitely access to justice and mobility through the government. So I think Punjab mein there is openness, stakeholders are willing to engage, government भी आपके साथ engage करती है, and अगर आपको कोई मसला है आप complaint लिख सकते हैं, जवाब मिलता है. Then the implementation problem is what we work on at Sheher, and often we find that out through our cases because Sindh mein I think the system is just generally quite broken. In Punjab, I think the system is somewhat functioning. It just requires much stronger implementation. For now. For now. I We mean, could break it if you like. it is getting there, I think. But I think that there's a level of, in Punjab, there's a level of accountability in the sense that agar मैं कोई complaint लिखूं to the CM complaint cell, someone is going to call me and follow up on it. Now, I may not see the results I want immediately, but someone is monitoring it. In Sindh, I don't think there's any way to get something like this done. All right, it's not a bad sign, honestly. I mean, the reason मैं थोड़ी levity introduce कर रहा हूँ to the conversation because जो आपका काम है, and I asked you earlier as well, are you all right? आपका काम काफ़ी खौफनाक और serious है, by the way. Because जब आप education की बात करती हैं, ख़वातीन की या police trainings की या law makers की training करने में, sensitivity training करने में, वो तो एक पहलू है. दूसरा पहलू is actually dealing with the gruesome nature of the cases and the जो litigation in ख़वातीन की चल रही होती है. And you were mentioning some of the cases earlier. What's the situation like abhi? Have attitudes changed? Like, is there a case you're working on right now that you can, उसकी details अगर आप बता सकती हैं? And how does Sheher work basically? So Sheher specifically, हमारा काम is mostly focused on domestic violence cases and cases of वरासत के cases, custody के cases, divorce के cases. So जिन केसेस में औरतों के हकूक़ दबाए जा रहे हैं या उनको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे, हम ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज़ को देखते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑल द वे टू बच्चों की कस्टडी और मेंटेनेंस के इश्यूज़, खर्चे के इश्यूज़.
ज़्यादातर यही होता है कि बाप बच्चे को छोड़ देता है सब बच्चों को माँ के साथ, बट कोई खर्चा नहीं देता. एंड देन गेटिंग द एग्जीक्यूशन डन, ऑर्डर्स तो मिल जाते हैं कोर्ट से, ऑफन फेवरेबल ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, बट उनकी एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल होती है उसमें. सो इन जनरल देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सो शहर comes in that हम पहले आपका केस लड़ेंगे ऑन द फोर फ्रंट. अगर रेप का केस है या कस्टडी का केस है हम उसको कोर्ट में लड़ेंगे, पर हमें हर कोने पर मुश्किलात पेश होती हैं बिकॉज हमारी सॉर्ट ऑफ सरकारी इदारों से टकराव होती है. तो जैसे अगर रेप केस देखें, हम उस पर बात कर रहे थे अर्लियर, रेप केस में पहले आपको मेडिकल कराना होता है. वो मेडिकल FIR के बगैर पंजाब में नहीं देते. लॉ कहती है कि आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आप पहले मेडिकल कर सकते हैं फिर FIR हो सकती है, पर यहाँ वो कानून नहीं जानते. वो तो कहते हैं हमारी SOPs ये हैं कि आप पहले FIR करवाएं. जब औरत जाती है थाने में FIR दर्ज कराने, लेट्स से अगेंस्ट हर रेपिस्ट, पुलिस कहती है इंटर्न कि आपके पास कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है. तो वो एक कोने से दूसरे कहाँ जाए एंड कीप्स रिपीटिंग हर ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे मेरा रेप हुआ है, आदमियों के सामने हर बार बताना. इट्स नॉट ईजी एट ऑल फॉर अ वुमन, स्पेशली हमारे मुआशरे में, टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स. सो देयर इज मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे अनपैक करने वाली. एक जो सर्कुलर नेचर है ऑफ मेडिकल और नो मेडिकल, FIR और नो FIR, ये कराओ, वो प्री रिक्विजिट लेके आओ, नहीं उसका प्री रिक्विजिट FIR है, ये तो आई अंडरस्टैंड. कानून आपने बताया कि मौजूद है कि मेडिकल हो सकता है विदाउट एन FIR और फिर सब्सिक्वेंटली एक FIR रजिस्टर हो सकती है. हाउ ब्रीफ इज़ द विंडो जिसके अंदर ये मेडिकल प्रोसेस होना होता है, लेट्स से इन अ केस ऑफ रेप? So in a case of rape 72 hours is the maximum because to collect DNA evidence. अगर आप नहा भी लें आपकी DNA वॉश आउट हो जाएगी. सो लोगों को पता नहीं होता कि हमने कपड़े नहीं बदलने, हमने नहाना नहीं है, बिकॉज nobody tells them. This is the police's job at the first instance to say कि आपने ये नहीं करना और ये करना है. And then the next step is going for a medical. So you have 72 hours, but within that the Anti-Rape Act says preferably within 6 hours and as soon as possible. So the idea is that अगर मैं एक rape victim को ला रही हूँ immediately, आप उसको immediately process करें ना. मैं एक incident में मैं services hospital गई and it was a male child that was raped and they didn't have any male doctors on duty. So then they said आप कल सुबह आएँ मेडिकल कराने. तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप किसी को बुलाएं. There should be one male and one female at all times available on duty, because why should I delay the evidence by another 12 to 14 hours? So these are kind of structural and institutional issues that you face within the system. One is that within the system कि आप government departments के साथ आपकी टकराव होती है because bureaucracy, red tape होता है within them. The second is that then obviously mindset response towards violence. In general हमारे I think हर तबके में there's a certain acceptance of violence, not just against women, in both genders. So पंजाब में हर 45 minutes एक औरत रेप होती है. That means that last year there were 6,600 cases of rape registered in the province of Punjab. It's a high number. It's a very high number. Yeah. And those were reported cases. Exactly. So आपने ये 45 minutes वाला statistic है reported cases की बुनियाद पे बताया. जी. So unreported पे जब जाएंगे तो it will probably be worse, खुदा ना खास्ता. Much higher. The reporting attitudes कैसे हैं? Like acceptability, पुलिस के अंदर वो जो एक क्लासिक lethargy जो एक perceived होती है कि नहीं यार मैं कैसे जाऊँ कि अंदर पुलिस मुझे कह देगी, वो improve किया या नहीं किया ये मामला? And availability of female officers for example. So I think दोनों फीमेल और मेल ऑफिसर्स को जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज फीमेल ऑफिसर्स भी औरतों से पूछती हैं कि ये केस क्यों रजिस्टर कर रही हो, कोर्ट में तुम्हारी इज्जत ख़राब हो जाएगी. दे डिस्करेज दैम. एंड सो आई थिंक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज़ कि सोशल मीडिया औरतों को आगाह कर रही है और अवेयर कर रही है कि ये आपके राइट्स हैं, आप इसके ख़िलाफ़ लड़ें. बट द सिस्टम इज़ नॉट कॉट अप येट. तो आई थिंक हमारे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी है, डिस्करेजमेंट भी होती है, एंड सिर्फ सबसे बहादुर जो औरतें होती हैं वो केस फाइट यानी करती the हैं. cases that we hear about, that is an exceptional human being. It is really an exceptional human being. With maybe a support system, either from an institution like yours or from their family जो फिर stand ले रहे होते हैं. एंड फैमिली की भी सपोर्ट नहीं होती. लाइक इन दिस केस दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट,
उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी एक बहन है और बहनोई है, बहनोई की भी गवर्नमेंट नौकरी है, तो वहाँ से वो उसको प्रेशराइज करके और उसके घर से बिजली काट रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट नौकरी को कटवाने की कोशिश सॉरी कर रहे फॉर हैं। कॉन्टेक्स्ट बाय द वे, एक रेप केस है जो आप जिक्र कर रही थी, एक अभी वो इन अंडर ट्रायल गया है, एफआईआर कटी है उसकी, FIR कटी है। कट की है. सो देयर इज अ रेप केस यू टेलिंग मी अबाउट अर्लियर, जहाँ पे देयर वाज अ मैन जिसकी सरकारी नौकरी थी, एंड वी कैन डिस्कस दिस राइट लीगली, दिस बी अप्रोप्रिएट. ओके, सो एक सरकारी नौकरी वाला आदमी था. ही इज purported टू हैव married a woman, and the day that he met her, यानी पहले दिन after nikah or whatever, he raped her at gunpoint. And उसकी पूरी बॉडी में lacerations थी, wounds थी, और 5 से 6 घंटे का आपने कहा ये प्रोसेस था, और 5 दिन लगे हैं आपको मेडिकल करवाने में. सो DNA एविडेंस तो शायद प्रॉब्ली ज़ाया हो गई होगी, बट एटलीस्ट वूंड्स की वैलिडिटी एक रिपोर्ट में आ जाएगी कि हाँ शी वॉज वेरी ग्रेवली इंजर्ड. एंड लाइक यू मैंशन के 5 दिन के अंदर भी हर वूंड्स वर नॉट हील्ड. तो बड़ी सीरियस उसको एक बीटिंग मिली थी उस आदमी से, और वो आदमी सरकारी अफसर है. तो वो उसके बहनोई को थ्रेटन करवा रहा है अपनी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू कि तुम्हें मैं निकलवा दूंगा और घर की बिजली कटवा देंगे. बिल्कुल, और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर एक रात के लिए बहनोई को लॉकअप में भेज दिया बिकॉज टू प्रेशराइज हिम टू टेक बैक द केस. सो पहले तो औरत आके बोलती है, शी स्टेप्स फॉरवर्ड, शी कम्स टू लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस आपको कहती है कि घर चले जाओ, फिर मेडिकल ऑफिसर्स आपको कहते हैं घर चले जाओ, फिर आपने कर भी लिया है बिकॉज मैंने इतना इंसिस्ट किया है कि मैं ये केस आपको जीत के दूंगी. तो उसने कर लिया है, बट उसके बाद उसके घर की बिजली काट रहे हैं, उसकी बहनोई को अरेस्ट कर रहे हैं. सो देयर इज सो मच प्रेशर. काउंटर FIR करने की कोशिश कर दी है उनके खिलाफ कि ये हमने फंसाने के लिए ये सब किया है उन्होंने. Do you think there's further legislation required to protect women like that? या is the law exists but attitudes change होने की ज़रूरत है? आई थिंक इन जनरल पाकिस्तान इज़ एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री. हर मौजू पे हमारे कानून होते हैं बट इन्फोर्समेंट नहीं होती किसी भी कानून के. तो द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट एग्जिस्ट्स to provide women with relief in such situations. सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए. जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है. वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगे, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा. वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं. अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे. कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता. मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें. तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें. थैंक यू. So Amna Kadir, you know, Chief Minister of Punjab, ideal world. She, by the way, audience के लिए this is Amna Kadir. I hope I took your name start में. So ideal world, you're the Chief Minister of Punjab, and you know you can do whatever you want with the law and implement it as you wish. What would be the process by which you would protect this woman जिसका ये केस चल रहा है? तो हमारी लॉ एग्जिस्ट करती है ऑन दिस टॉपिक विच इज़ द एंटी रेप एक्ट. एंड जैसे ही कोई भी रेप विक्टिम आए हॉस्पिटल में, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने उसका मेडिकल इमीडिएटली करवाना है ताकि सब DNA एविडेंस प्रिजर्व होए. ठीक. हॉस्पिटल्स में खिदमत काउंटर होता है जो कि नहीं फंक्शनल. खिदमत काउंटर का ये काम है कि वो पुलिस को कॉल करें और कहें कि ये लड़की आपके मुतलके थाने से आई है फ्रॉम योर जुरिस्डिक्शन, आप आके इसका DNA एविडेंस कलेक्ट कर लें. इट्स एज सिंपल एज दिस. फिर उसके बाद केस प्रोसेस हो, आप जाके सैम्पल्स कोर्ट में सबमिट करें. हमें मेडिकल ऑफिसर से ये भी रिस्पॉन्स मिला कि आपने तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर आपने नहीं लिया. यू हैव टू गेट अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर बिफोर यू गेट द मेडिकल डन. सो देयर वाज अनदर लेयर कि आप मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करवाएं. एनीवे, सॉरी टू कट के वेयर इज़ व्हाट्स द एक्चुअल प्रोसेस. तो आप जाएँ, नेक्स्ट डे आपकी एविडेंस हो, आप कोर्ट के सामने आके अपनी स्टेटमेंट दें, औरत अपनी स्टेटमेंट दे, पुलिस ऑफिसर उसके बाद भी FIR रजिस्टर कर सकती है नाउ कि आप डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड. इवेंट्स जो हुए हैं, शोहर ने किए हैं नहीं किए इज़ नॉट रेलिवेंट.
हुआ क्या है। फिर उसके बाद आप देखें क्या ऑफेंसेस मेकआउट होते हैं, आप उसको अगर आपने क्वेश्चन करना है आप उसको बुलाएं, बट आमने सामने सुलह करवाने का कोई ये कोई गुंजाइश नहीं है कानून में इसकी। और ये हर केस में कोशिश करते हैं कि लड़की और आदमी के साथ सुलह करवाएं। एंड इमेजिन द trauma of a woman to go through having to sit with the man who's raped her to compromise. Is it always in the case जब मियाँ बीवी होती हैं No. और with strangers as well? With any kind of strangers में भी ऐसे करते हैं कि समझाएं कि क्या एक्चुअली हुआ है, आमने सामने बिठा के। आमने सामने बिठा के। मोहल्ले वाले लोगों के साथ अगर ऐसे कुछ होता है वो आमने सामने बिठा देते हैं। हर केस में वो आमने सामने एक कमरे में कहते हैं आके बात करें। एंड आई वेंट ऑल द वे टू द टॉप इन दिस केस एंड आई सेड ये बिल्कुल नहीं आएगी उसके सामने, आप इसको नहीं, इस बात पे नहीं ट्रॉमेटाइज करेंगे। एंड देन आप इट्स वंस यू गेट द पहली बात तो मेडिकल है, दूसरी इज FIR किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं फ्रॉम अ फीमेल ऑफिसर, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग कि हर बार मेल ऑफिसर आके उससे पूछे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। स्पेशली हमारे मुआशरे में टू स्पीक अबाउट रेप ओपनली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड उसके बाद फिर वो आपको लेबल करते हैं कि आपकी इज्जत से रेप इज़ एसोसिएटेड, विच इज़ नॉट द केस। द ओनली पर्सन's इज्जत रेप अफेक्ट्स इज द इज्जत ऑफ द रेपिस्ट, because the woman doesn't have a choice. It's not reflecting on her dignity or her personality. But first step is medical, and then second step is FIR, and then the third step is actually collecting the evidence and making sure that person is timely abducted or brought into, not abducted because that was arrested and brought into police custody. जी। Because when you bring him into Abduction भी option है पंजाब में, by the way. which if they could do in these cases, I would be very grateful. They shouldn't do in any cases. If you can abduct, arrest them. It took 4 days to arrest him. जी। And then there was no weapons. And even in that case, when they took him after 4 days, no medical was conducted to check. ये जो आपका भी केस डिस्कस कर रही हैं उसमें उसने अपनी वेपन भी छुपा दी थी। वेपन भी छुपा दी थी। अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको प्री अरेस्ट बेल मिल गई है। अब मैं इसको मंडे को कंटेस्ट करूंगी। But the actual process for a rape victim is supposed to be quite streamlined. Is meant to be medical, FIR and police. ब्रेकडाउन्स आपने जगह जगह बताए। एक आपने बताया कि मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी आप FIR लेके आएँ, या आपने कहा कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आएँ। ये एक नई पख डाल दी उन्होंने, जिस कम्प्लीटली न्यू, मैंने भी कभी पहले नहीं सुनी है। दूसरा ब्रेकडाउन आपने फरमाया कि आता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उसको, तो वो अटैम्प्ट करती है कि वो कोई पंचायत या कुछ सुलह सफाई करवा लें। जगह जगह एटीट्यूड की प्रॉब्लम ही नज़र आ रही है, कुछ कानून में ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो इज़ इट अ लैक ऑफ ट्रेनिंग और इज़ इट अ प्रॉपरली नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड एटीट्यूड दैट दे हैव टुवर्ड्स रेप? एक तो है ना कि उनको ट्रेनिंग नहीं है कि करना क्या है, इज दैट इज व्हाट इज लैकिंग, या एटीट्यूड्स जो हैं वो टुवर्ड्स रेप वो सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को? I think both. You think दोनों, definitely both, because मैंने ऐसे भी लोगों से राब्ता किया है जो कि कानून का उनको पता ही नहीं है। पता भी नहीं है कि अगर शोहर करे it still can constitute as violence. It doesn't change the fact that the woman, especially if she's just met him on that night, she's never met him before, he's equivalent to a stranger. तो उनको पता भी नहीं है कि इस 6 घंटे में DNA एविडेंस कलेक्ट करनी है, इनको पता भी नहीं है the importance of the DNA. तो अगर आप पहले स्टेप पे एविडेंस नहीं कलेक्ट करेंगे, your entire case gets compromised, because a rape case is based solely on evidence beyond statements etc. जी। तो पहली बात तो ये है कि उनको कानून एंटी रेप एक्ट का किसी को नहीं पता है हर लेवल पे। और फिर जेंडर सेंसिटिविटी का भी बहुत मसला होता है, बिकॉज इन जनरल देयर आर दीज एटीट्यूड्स के आई गेस लोगों को ये मसला होता है कि हम खाना कैसे खाएं, हाउ डू वी पुट फूड ऑन द टेबल, that there's a general sense of frustration and violence, and there's an acceptability of societal attitudes towards violence against women. So it's quite common in households कि I think 90% of women in Punjab have faced some kind of violence in their lifetimes. 90%, that's a big number. The National Commission on Human Rights reported this, that they've experienced some kind of violence. So some kind would constitute like being harassed in public, like would it be catcalling या being like groped or something? It would be both. Would be both. Because उससे लेकर to straight up domestic violence or sexual assault. Abuse, Right. physical abuse, verbal. Lots of women in marriages experience verbal abuse without the physical line. So there's a huge problem of both in this particular system.
One is So how many of these attitudes can be legislated away and how many of these attitudes need to be educated away? Because दोनों चीज़ें, you can't really legislate everything away, like all kinds of ills, right? जैसे आपने कहा कि verbal lashings that women might get in the household or in a domestic environment, in schools, in universities, even in a workplace, शायद उनके साथ ज़्यादा एक बदतमीज़ाना टोन इख्तियार की जाए या गालियाँ दी जाएँ या बुरी बात की जाए, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिया जाए उन्हें बिकॉज दे आर परसीव्ड एज अ वीकर सेक्स और जेंडर, ठीक है? Can you really legislate those things away? Yeah, is that a generational attitude sort of thing that needs to change? You can't legislate those kind of things away. And this is the kind of work that Sheher does. कि शहर एक तरफ trainings करती है to change mindsets. So training for law enforcement, training for judiciary, training for police, because it's only through trainings and conversations that people can start slowly changing. And the second is the job of the media. And it's the job of raising awareness. And that is what reaches the mass public. So, we've started a ticker on Radio Pakistan. And we keep trying to get them to, we keep saying public service messages को discount के तौर पे दें, वो नहीं करते. But हमारी यही कोशिश होती है कि far flung areas में हम एक ticker चलाएं कि घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है. And अगर आपको मदद की ज़रूरत है, आप, call us or call the Women Protection Authority. But this requires कि आप repeatedly चलाएं news पे, tickers पे. Okay, so the added, okay, fair point. Public awareness campaigns, PSAs जो होती हैं, social awareness की. Let's just them as an idea. यहाँ पे 2-3 problems होती हैं. जब सरकार करती है तो there is always the problem of corruption. कि it's like a scheme जिस पे कुछ भी नहीं होना, nobody's going to get any help from it. It's just they're buying up ad time या जो भी. एक ये complaint होती है लोगों की. दूसरा ये होता है कि जब NGOs करते हैं तो रिलीजियस टाइप्स गेट इन लाइक अ टिजी अबाउट इट कि ये क्या है और ये हमारा ख़ानदानी निज़ाम और व्हाटएवर. इज़ देयर नो वे कि जहाँ पे सिंथेसिस हो पाए कि वेयर इट डजंट फील लाइक टॉप डाउन कोई बाहर से एक एंटिटी, लाइक इट्स फॉरेन सॉर्ट ऑफ एंटिटी टेलिंग देम के, लाइक व्हेन यू हैव टेलेनोर डूइंग इट फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव कॉर्पोरेट्स डूइंग इट कि लाइक वो ख़वातीन के, इट जस्ट सीम्स सो इनसिंसियर एंड सिनिकल. You get what I'm saying? Like it elicits a very negative response awam ke andar where they're like, or at least a certain segment of awam ke andar. It's like when Coke Studio, like Coca-Cola does music festivals, right? It's like, but you're Coca-Cola. Like how are you co-opting the culture and telling us what is right or wrong or good or bad or art or not? तो वो एक disingenuity होती है with the corporate style. I'm not saying the US are doing that, but with the corporate style or a state-backed PSA. मतलब फॉर एग्जाम्पल, नो ऑफेंस टू द गवर्नमेंट, लेट मी टेक एन आर्बिट्ररी एग्जाम्पल. अगर शहबाज शरीफ साहब की कैंपेन होती है तो देयर बी अ बिग पिक्चर ऑफ शहबाज शरीफ नेक्स्ट टू द कैंपेन. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक ये एटीट्यूड, बिकॉज दे सी इट एज द गवर्नमेंट इम्पोजिंग समथिंग ऑन देम. दे ऑलरेडी हैव अ वेरी, आप कह लें, टेनुअस रिलेशनशिप विद पावर, विद द स्टेट एपरेटस, विद द पुलिस. तो फिर नाउ इट्स द सेम पुलिस टेलिंग देम अबाउट like when the police does like a pink day or something, जब वो ribbons बांध लेंगे for breast cancer, या at a random petrol station they'll create कोई arbitrary सी कि ये pink line है, यहाँ पे सिर्फ औरतें पेट्रोल भरवा सकती हैं. PSO वगैरह में एक कैंपेन थी. They seem like trivial, they seem like frivolous, they don't seem like real genuine efforts to uplift women. They almost seem offensive to the senses. ये प्रॉब्लम कभी एक्सप्लोर हुआ है in your meetings? because आप जेल कमेटी के रिफॉर्म पे हैं. बाय द वे, सरकारी जो जेल कमेटी है, जेल रिफॉर्म कमेटी है, उसके ऊपर आपको उन्होंने हायर किया एज एन एक्सपर्ट. हायर तो नहीं, they've added you as an expert. It's not a job, it's completely volunteer work, but as an expert they've put you on. Have these things ever been communicated कि जो attitudes को seriously नहीं लिया जाता at the lowest rung of society? आम बंदा कहता है ये क्या है, BS. So yes, on the first, तो आपका पहला जो सवाल था which is regarding corporates. जी. अब it boils down to who has the money, right? जी. Ads चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है. Now let's say for example an organization like Sheher, my budget does not allow me to have millions of rupees per month to run ads. And so then eventually for someone like myself, मेरा तो ये मकसद है ना कि मैसेज बाहर औरतों के पास पहुँचे जहाँ भी वो हैं. But there's ways to see. तो अगर सरकार ये कर रही है, for example आपने शुरू में कोई करप्शन की बात की थी, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स नीड टू बी स्ट्रेंथन. तो मैं अपनी टीम को कहती हूँ, अब जो भी आपको कॉल करे फॉर लीगल एडवाइस, आप उनसे पूछे आपको कैसे पता चला शहर के बारे में, सो दैट वी कैन स्ट्रीमलाइन एंड सी कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ आवर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स. हाउ मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू रेडियो, हाउ मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू अ TV ad,
And that is the Where kind do you get the most response from? so the most response we get from is from Facebook. I knew you were gonna say Facebook, So, by the way. but that's because Facebook for us is free. It's like so cheap. We can do, and this is, we're just, you know, part of certain groups where people hear about Sheher and they come to us. Unfortunately, we have not yet allocated the amount of budget that I do plan to do so in the future for radio and for TV. But the government has this kind of budget. And you can, so whether आप किसी like a famous person की तस्वीर लगा लें, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लगा लें, I guess that for me is a second problem. मेन चीज़ ये है कि औरतों को पता ही नहीं है उनके हकूक़ क्या हैं. मेरे पास औरतें आती हैं जो कि उनको पता नहीं है कि उनकी लाइक बाप की विरासत में उनका हिस्सा है, शरई तौर पे उनका हिस्सा है. इनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती. So you're saying that the corporate wala, I completely understand. That was just mean spirited of me. I know completely. I agree with you. There is no, उसको circumvent नहीं कर सकते. You need funds. But जो सरकारी वाला है, आपकी बात बड़ी वैलिड है. अगर किसी को समझ आए वो ये है कि it's inevitable. अगर सरकारी महकमा होगा, अगर करप्शन लीकेजेस होंगी, उनकी अपनी PR कैंपेन होगी, that's their problem. आपके लिए it's a vehicle to get the message out. So you're cynical like that. You're like बस पैगाम पहुंच जाए, क्या फ़र्क पड़ता है. Now it's funny you mentioned Facebook and Instagram. These are very effective tools because And TikTok. And TikTok, We by just the way. started TikTok. TikTok, and they're so cheap because में आप चंद हज़ार रुपए खर्च करते हैं and you can show it to all of Punjab. Yeah. If you do the वो जो algorithm में उनकी ad spending वगैरह होती है. So that's a good alternative, I think, social media. Do you think that social media is the next step in educating people? Like अगर आवाम educate हो जाएगी तो वो state को pressure करेगी कि हमारी मर्जी के मुताबिक करो. Like upwards आपको pressure feel हुआ है कि where people are now confident in reporting their cases and are pressuring the police, or do you feel like अभी भी आवाम के अंदर भी बिल्कुल zero education है? I think that मैं इसी वजह से अपना काम कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज मुझे इवेंचुअली मेरा एक गोल है एंड दिस इज़ माई विश कि पीपल गेट अवेयर इनफ एंड दैट इवेंट आप ये भी आई से द सेम थिंग अबाउट PTI protests, the number of people that come out, they force the government to listen. So eventually if this number of people and these number of women speak up, they will force the government and anyone in power to listen. At the moment आपके पास ये women's issues बीच में dotted हैं, so many other problems, wheat के prices, you know, oil की कीमत, default, तो औरतों के issues तो बिल्कुल end पे आते हैं. But the more women that come up, and that is why we're doing things like हम community centers पे जा रहे हैं within communities like बेदियाँ etc. हम वहाँ औरतों को अपने हकूक़ के बारे में आगाह करते हैं. We give them options. We don't just say कि ये आपकी rights हैं, ये laws हैं. हम कहते हैं कि आप हमें कॉल करें, हम आपको एडवाइस देंगे. इससे पहले उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कानून, प्रॉपर्टी कानून, उन्होंने सुना भी नहीं होता. पहली दफ़ा वो सुन रहे हैं. These are women from the ages of 18 to 25. ID cards नहीं हैं उनके पास. So the state actually needs to be involved in ensuring that the Ministry of Interior needs to send mobile vans to these areas and get these people registered. But I think these campaigns, it's going to take ages. I am not the state. It requires these kind of campaigns from the state. I can only cooperate with जो लोग मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आप मेरे community center पे आएँ, मेरी टीम जाती है. But state की outreach is the most critical. The province of Punjab has 100 million women. तो इस 100 million women को अपने rights के बारे में educate करना and then eventually males को भी educate करना, क्योंकि males ही होते हैं जो कि चंद instances पे उनकी rights को steal करके उनको kind of compromise करते हैं. So it requires educating males and A majority females. of the perpetrators are men. नहीं? So in cases of rape, for example, people often say, you know, there's a lot of propaganda against minority communities. In cases, you know, I get a lot of cases against Christians, a lot of cases against Khwaja Siras. If you look at the statistics, the largest number of rape crimes in Pakistan, there's 0 rape crimes committed by Khwaja Siras and very few by Christians. Minuscule. Largest are by majority male of the, you know, Muslim. Right. Obvious the number. population. The population numbers ऐसे हैं. So they're all male. So do you think this is the first time I've heard कि Christians और ख्वाजा सराह community को scapegoat किया जाता है, but this is a new insight for me. ये एक common phenomenon that you've noticed, the scapegoating of कि ख्वाजा सराह ने rape किया. So this is a lot. There's a big, you know, thing is Khwaja Siras will, I guess, a separate topic, but Sure. they're, you know, compromising integrity of society. They should be deprived of ID cards. And I often say when I go to court, I often ask the judge, I say कि
how many cases of rape have you ever received from a Khwaja Sira? Every case of rape is inflicted upon them, or cases of violence is inflicted upon them. When have you ever seen members from these communities go out and inflict violence upon other people? Unfortunately, in most cases, even with property, भाई होते हैं जो अपनी बहनों को अपने विरासत से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं. It's brothers, it's fathers. जब बाप की मौत होती है वो औरतों को कलूड करके उनका थंबप्रिंट लेके कह देते हैं कि we've agreed to give away our inheritance. This is very common, and specifically in Punjab, because the revenue officials are kind of mixed in with the people. So I think there's a level of, on every level we're trying to raise awareness, because here we're starting from a point where women don't even know the laws that exist. They're just not aware, zero. So it's quite clear कि inevitably आपको you have to turn to the government to do anything real and actionable on ground जो कि long term हो. जो अभी जेल कमिटीज़ के ऊपर आप आई हैं, रिफॉर्म कमेटी, उनका मकसद क्या है, वो किस नीयत से बनाई गई हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक योर रोल विल बी देयर? So jail reform committee pe I'm the coordinator, which means that I'm meant to arrange the visits, compile a report, and at the end present that to the Chief Justice of Pakistan. I've done a literature review on this, and पिछले 10 साल में तकरीबन 10 different jail reforms की committees हुई हैं, और उन्होंने भी recommendations अपनी दी हैं जो कि बहुत comprehensive हुई हैं. But the one legislation that needs improvement is the Punjab prison rules that has not been amended since 1978. तो अगर आप prison rules को देखें ना, तो वहाँ कोई भी chapters हैं training पे, तो no training of the prison staff is mandatory or required under the law. फिर औरतों को basic facilities like sanitary pads, sanitary napkins, diet, nothing has been modernized since 1978. Which means कि bare minimum facilities भी आपकी prisoners को नहीं मिल रही, और जो कि inspections होती हैं हर महीने वो system के within से होती हैं. तो you have inspections from district and sessions judges, inspections from health authorities, but none of these inspections are done by external visitors. दुनिया भर में external visitors करते हैं, third parties करती हैं ताकि कोई accountability mechanism हो. तो मेरा ये गोल है कि जो भी हम reforms अभी suggest करेंगे, एक तो reforms हैं which are over time, under trial prisoners being expedited, etc. But there's things that have been suggested multiple times in history. So we need to take those reforms, and then law में जो तब्दीली करनी है, it's in the rules, that's the first step. Psychologist की कोई गुंजाइश नहीं है rules में, dentist की कोई गुंजाइश नहीं है rules में, diet का, pregnant women की diet का कुछ नहीं लिखा हुआ. So of the Punjab jails में आपकी पूरे पंजाब में 120,000 prisoners हैं, इसमें से 80,000 से ज़्यादा are under trial, which means कि इनकी they are taking up almost 70% of the jail population because their trials are not being processed. So one thing is improving the quality of the life of the prisoners living there, and actually what is the purpose of a jail? It's meant to do rehabilitation ताकि जब आप निकलें आप वही crime ना commit करें. So the debate here would be कि retributive justice के तहत they should live in poor conditions and उनको सज़ा मिली हुई है, because this is the attitude that we have, I think, commonly पंजाब और पाकिस्तान के अंदर, पूरे के अंदर, साउथ एशिया में ये एटीट्यूड है कि जेल जा रहे हो, you know, काला वीगो आ जाएगा, abduction से लेके to actual arrest, we have a sort of a giddiness when somebody we don't like goes to jail, and the attitude is कि इसको सज़ा मिल रही है and they should be punished and physically tortured or, you know, kept in poor conditions and given poor food to eat और वो सारा कुछ. So अगेन दोबारा वो इसी पे घुमा के आ रहे हैं. क्या पुलिस के अंदर आपको एटीट्यूड चेंज नज़र आया है हायर अप ऑफिसर्स के अंदर कि ये रेट्रिब्यूटिव नहीं है, ये प्यूनिटिव एक्शन जो है ये रिहेबिलिटेशन के लिए है? डू दे अंडरस्टैंड दैट, और डू यू थिंक कि अभी बहुत मरहले बाकी हैं? या अभी बहुत मरहले बाकी हैं. आई थिंक ये रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं टेक रूट किया पंजाब में. इट्स रियली अ लॉन्ग वे टू गो. जहाँ हम हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आप कह रहे थे ना कि पीपल गो टू जेल, हम देख के खुश होते हैं कि मेरा एनिमी जा रहा है जेल, दैट अगेन किसी और की डायरेक्शंस पे ऑफन काम हो रहे होते हैं, तो प्रिजन ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है. अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं ऑफन केसेस में, उनको डायरेक्शन कहीं और से मिल जाती है कि इस बंदे को सॉलिटरी में रखो या इस बंदे को डेथ सेल में रखो, विच is not allowed under the prison rules. और ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी भी
unless the person is convicted for a death crime, that is a death punishable by death, you cannot keep him in a death cell or her. But they use that to torture political prisoners and other, prisoners that they want to set a lesson to. And the level of torture is also extremely high, as you must know, with the police and prison officials. You on your committee, you've been joined by people like Ahad Cheema, who's been to jail, And Khatija Shah, who's also been to jail. And dono, in a sense, political prisoners the, in a sense, we can argue. Khatija Shah तो definitely, Ahad Cheema maybe, I guess, एक political case के अंदर ही वो sort of jail गए थे. Do you find कि उनके attitudes changed हैं to a typical यानी person compared to somebody who's not been to jail? Do they really see कि नहीं यार बहुत काम होने की ज़रूरत है jails के अंदर? Yes, I think definitely. मैं अभी तक जेल नहीं गई and I hope I don't have to go. मैं जाऊँ भी ना. But I visited jails a lot. So हमारा जो because मैंने prison rules को previously rewrite भी किया है, तो हमारा consensus यही है हम तीनों का कि these are the things that need to be improved in the jail. But that being said, I don't think कि political prisoners जो जाते हैं, they don't go with the sense of being rehabilitated. The largest prison population is of drug addicts in Punjab. तो आप drug crimes पे जा रहे हैं अंदर या आपने murder, second largest is murder. तो उन prisoners को rehabilitation की ज़रूरत है ताकि उनकी drug की habit जो है, वो नशे की habit टूटे prison में. अब prison में अगर आप किसी को पैसे दे के नशा ले रहे हैं, फिर आप वापस जब निकलेंगे और आपका सेंटेंस फिनिश होगा, अब वही क्राइम कमिट करके 2 साल बाद वापस जेल में होंगे. सो ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स द सेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन इज़ डिफरेंट. वो फैसिलिटीज़ के बारे में आपको कह सकते हैं कि ये इम्प्रूव होना चाहिए, खाना इम्प्रूव होना चाहिए, बाथरूम्स बहुत ख़राब हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं. बट फॉर द एक्चुअल सेंस ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ जेल, आपकी इनकार्सरेशन सिस्टम का मकसद क्या है? इट इज़ टू इंश्योर कि क्राइम्स कम हो. बट आप रिहेबिलिटेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे, और इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं ना, कि कोई स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आके पार्टनर आप करें, आके स्टूडेंट्स को सिखाएं वहाँ. यूज द मोस्ट फोकस इज ऑन कुरानिक एजुकेशन बट नॉट ऑन एक्चुअल skills and education that they can use when they come out of jail to seek employment, which is extremely important to prevent you from committing the crime. Otherwise you get stuck in the cycle of depression, you don't have employment maybe. And considering the drug related crimes, जैसे आपने बताया, ये बड़ी एक fascinating insight है कि majority जो jail population है पंजाब की वो drug related crimes में. So that's more of a case of out of sight out of mind as opposed to actually punishing or even rehabilitating these people. The point is to clean the streets up. चलो इनको डाल दो अंदर. Do you think ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, क्या जेल कमेटी की इतनी रीच है कि ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को वो सेपरेटली हाउस करे फैसिलिटीज़ में एज अपोज टू मेन स्ट्रीम जेल्स के अंदर, या सब जेल डिक्लेयर करके कोई छोटी यानी फैसिलिटीज़ विद इन जेल्स डिक्लेयर कर दी जाए कि यार ये ड्रग रिलेटेड क्राइम्स हैं? Do you think that's possible for the jail committee? I think definitely this is something definitely that we should try to focus on, कि specifically drug related prisons and prisoners globally इनका कैसे डील होता है. ये साथ होते हैं या सेपरेटली हेल्ड होते हैं, और फिर इनकी ट्रीटमेंट कितनी ऑफन होती है. साइकोलॉजिस्ट से एक्सेस, समटाइम्स फॉर सिवियर एडिक्शंस आपको दवाई की भी ज़रूरत होती है, सो हैज़ टू बी मॉनिटर्ड. अगर हेरोइन वगैरह की एडिक्शन से उतरने के लिए आपको वो लेने पड़ते हैं जो रिप्लेसमेंट के ओपिएट्स होते हैं, बट वरना फिर वो रिलैप्स करके मर जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड यहाँ तो आई थिंक ऑफन ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ड्रग ऑब्टेन कर लेते हैं. नहीं तो हेरोइन ही कर रहे होते हैं जेलों में. जी. सो it defeats the purpose of incarceration. Do you think कि जेलिंग के एटीट्यूड्स अभी भी वो ब्रिटिश राज वाले हैं कि मतलब ये ताज के दुश्मन हैं, क्वींस इंडिया के दुश्मन हैं, इनको जेलों में डालो? इज दैट द एटीट्यूड जेलों के अंदर? बिकॉज स्ट्रक्चर्स भी लिटरली इतने पुराने हैं. स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने लाइक जेल्स में व्हेन यू एंटर, लाइक वो झुक के अंदर जाना पड़ता है. इट्स वेरी लाइक अ ब्रिटिश राज कॉलोनियल काइंड ऑफ थिंग के जेल ऑफिसर के सामने झुक के अंदर आओ. एंड is that do you think continuation है उसी एटीट्यूड की? I think definitely there's a gap in terms of training नहीं हो रही. ट्रेनिंग के बगैर आप कैसे मॉडर्नाइज करेंगे अपने सिस्टम्स को, एटीट्यूड्स को? अगर किसी प्रिजन स्टाफ को पता ही नहीं है कि मैंने इस बंदे को स्क्रीन नहीं करना, मैंने इस बंदे को ऐसे फिजिकली टच नहीं करना, मारना नहीं है, तो ट्रेनिंग के बगैर वो ये सब चीज़ें करेंगे. So I think it boils down to really a lack of education and then also infrastructure problems. तो जो आपने झुकने का कहा है, ये this can be changed.
ये जो छोटे छोटे गेट्स बनाए हुए हैं, ये तो गोरों के ज़माने का ट्रेडिशन है ना यहाँ। एक गेट से जाएं, फिर दूसरे गेट से जाएं, फिर अंदर लॉक एंड की से, मतलब अब हम 21st सेंचुरी में, आई डोंट थिंक दिस इज नेसेसरी। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट I think वो जो I think it's something जिस पे फोकस ही नहीं किया गया. I think the conversation has never really started up. Do you think the jail committee, what is your vision with the jail committee? कि conversation start करना, or do you think कि actual change भी आएगा? My vision is that the conversation has been happening for decades. My vision is कि change अब आए, और जो भी हम reform suggest करें to speed up under trials. And this is not कि just for people who are in the jail. अगर आप under trial for जो लोग जेल में हैं, आप speed up करेंगे, तो फिर जो जेल में नहीं भी हैं, आप उनके लिए भी speed up करेंगे, Right. because the entire process is going to be fixed. तो आपको पता ही होगा, हर डेट ऑफ हियरिंग पे जाके लॉयर्स एडजर्नमेंट मांगते हैं, और उनका बस यही गोल है कि केस को लटकाएं, इसको आगे नहीं बढ़ाना, सज़ा नहीं दिलवानी, कन्विक्शन नहीं चाहिए, बस सालों साल इसको लटकाएं. तो द आइडिया इज़ कि आप कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप करें, पीनलाइज करें जिन लोगों को, हैवी कॉस्ट्स इम्पोज करें जो केस को डिले करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑन द अदर साइड देयर माइट बी समवन सिटिंग इन जेल फॉर इयर्स बिकॉज the trial is not processing. And often it happens. सबसे ज़्यादा prisoners जो prison population में हैं, their cases have been pending for 2 years and more. The largest population. 2 years is a very long time to spend in jail. And then, मतलब, I think the reforms have been suggested many times, but the main thing is we need to find a way to ensure we have modern systems in place. जेल्स के अंदर गैंग वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और ड्रग अब्यूज, इसके बारे में कोई काम हुआ है? लाइक व्हाट इज द सिचुएशन इनसाइड द कम्युनल सिचुएशन? अभी तो इनफरादी आप बात कर रहे हैं ना कि डाइट, उनको स्किल ऑप्शंस मिले वेयर दे कैन लर्न. व्हाट अबाउट द कम्युनल लिविंग स्पेसेस? वहाँ पे क्लोजली मॉनिटर्ड हैं, या कैन वी एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ दुनिया के जेल्स के बारे में जो मशहूर है, सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, गैंग क्लिक्स बन जाती हैं where they go into different groups, या ये सब नहीं है पंजाब की जेल्स में? I think to some degree ये सब है. We don't have the data. There's also very few data reporting mechanisms. तो जो for example individual reports हैं, मैंने जो study की हैं फैसलाबाद जेल में, for example, multiple people have reported torture From the police? From the jail the staff? prison staff. So these are things that have been reported by Human Rights Watch, etc. But आपको पता ही है कि state ये चीज़ें नहीं track करती, तो it's very difficult to say कि With ये confidence हो रहा है. कि X या Y हो रहा है, and at which numbers. You're right. And then the people on our committees are also political prisoners, so then therefore they are treated slightly differently to the common criminal. I mean, I wish you the best of luck for the jail committees. Honestly, I don't know कितनी कामयाबी आपको मिलती है. I hope कामयाबी होती है, because any one of us could end up in a jail. जुर्म होते हैं, इंसानों से ही होते हैं. Hope we don't end up in a jail, but I think there's a saying like if you if you want to assess a society, I'm butchering the saying by the way completely, लेकिन अगर आप किसी माशरे को assess करना चाहते हैं तो you should look at their prison populations. It really shows how people treat other people, because prison populations एक vulnerable group ही होते हैं, चाहे वो मुजरिम भी हों, even मुल्जिम, लेकिन मुजरिम भी हों तो इंसान तो होते हैं at the end of the day वो, and they deserve sympathy and to be treated with human dignity जो basic कानून के अंदर मौजूद है. ख़वातीन के मसलों से लेके डू यू थिंक रिलीजियस एटीट्यूड्स चेंज कर सकते हैं? यानी कि जहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप लोगों को एम्पावर करें, आप जैसे इदारे को एम्पावर करें और स्ट्रेंथन करें, एज अपोज टू कि वो रुकावट बने, और क्या वो रुकावट है एनी मोर, इज दैट लाइक अ थिंग ऑफ द पास्ट? I think a lot of times हम ये फेस करते हैं रिपरकशन के, इसमें लाइक कुरान क्या कहता है, शरिया क्या कहती है इस बात पे. एंड अब मैंने बहुत हदीस की कोट्स भी निकाली हुई हैं और कुरान की भी निकाली हुई हैं टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स दैट आई एम मेकिंग, बिकॉज आई वांट टू कम फ्रॉम अ पोजीशन दैट्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. तो जैसे हम रिसेंटली मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं फॉर वुमेन इन मैरिजेस. अब सूरह निसा कहती है कि अगर आप औरतों को, इफ़ यू डिवोर्स्ड योर वाइफ देन गिव हर अकॉर्डिंग टू योर मीन्स. तो जितना आप कमाते हैं उसके मुताबिक उसको गिफ्ट ऑफ पार्टिंग दें, गिफ्ट ऑफ कॉम्पनसेशन. एंड बहुत मुस्लिम कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, एंड देव इनैक्टेड लॉज फॉर दिस. टू गेट बैक टू वेदर इन पाकिस्तान देयर इज़ आपको पता ही है, हमारा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो कि हर कानून को देखती है.
एंड कानून को स्ट्राइक डाउन भी करती है. And kabhi kabar I don't agree with a lot of times I don't agree with why it's struck down. But then of course there's this general population mindset. Okay, is it okay to strike your woman lightly? There's this conversation to what extent is violence acceptable? The Miswak gang. And you know the Miswak gang. Yes. and you know, it's the thing is it boils down to where do you draw the line then? जी. Because it becomes arbitrary. आप सही फरमा रही हैं कि जब आपने दरवाज़ा खोल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, चलें इस केस में लाइट बीटिंग, बट आपने फिर दरवाज़ा खोल दिया ऑफ एनी काइंड ऑफ बीटिंग बिकॉज इट्स आर्बिट्ररी कि जी ज़ख़म ना हो तो ज़ख़म कौन इंस्पेक्ट करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट्स कम्प्लीटली आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो आई थिंक ट्रेडिशनलिज्म के साथ एक देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम रिलीजियस थॉट में, बट आई थिंक इट is modernity रास नहीं आई हमें in the sense के modernity requires this sort of very British empiricist style of constitutions बनाओ, कानून को pinpoint करके if A then B, if B then C, and our religious tradition is not like that. It's a vast tradition of opinions as opposed to okay this is the constitution of Islam, ये one pager आ गया and we know कि X करना और Y नहीं करना. And I think that has forced them to take the harshest possible positions जहाँ गुंजाइश भी होती है, जिन मसाइल के अंदर लीवे भी होता है. हैव यू फाउंड, डोंट यू थिंक वुड बी बेनिफिशियल कि कुछ उलमा हु आर हिप विद द प्रोग्राम, राइट, हु आर विलिंग टू रिकग्नाइज कि ये मसाइल हैं दैट नीड टू बी रिजॉल्व क्विकली, कि उनको पोस्टर चिल्ड्रन बनाया जाए फॉर वुमेन्स राइट्स इशूज़ और बाकायदा खुतबात के अंदर. द जुमा इज़ अ पावरफुल थिंग मैन, like everybody listens to it, like badtareen banda has to go to the Jummah, like a horrible character even has to go to the Jummah. They do end up showing up there, and plus loudspeakers hote hain, so it's even going outside of the mosque. Don't you think कोई ऐसी collaboration हो सकती है कि completely of their own volition where you speak with certain masajid और मदारिस कि यार इसको अपने करिकुलम के अंदर अगर ऐड करके इस पे आप हमें बताएं, यानी have you इस तरफ कोई डायरेक्शन में कोई काम हुआ है? काम नहीं हुआ, बट आई थिंक डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज देयर इज ऑफन रेजिस्टेंस फ्रॉम जी मजहबी तबके से इसी मतलब साइड से आता है, बट इट्स नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम द पीपल, इट्स मोर काइंड ऑफ लाइक व्हाट डज रिलीजन से अबाउट दिस, एंड फिर रेजिस्टेंस आती है. बट आई हैव टू से दैट ऑन दिस पॉइंट ऑल आवर वर्क वी ट्राई टू सपोर्ट इट विद इस्लाम. एंड जब मैं जजेस की ट्रेनिंग करती हूँ मैं उनको फाइनेंशियल तरीके से कहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ हज़रत खतीजा. He used to work for his wife. She was the trader. Yes. So in our society, when women are told कि आप काम पे नहीं जा सकते, आप घर पे बैठे, I'm like आप फिर अपनी religion को properly study करें. Study करें कि who was dependent on who was given what in the marriage, etc. So this definitely I think is a big way to open up. But the problem then becomes कि कौन actually original कुरान को उसके तर्जुमे के साथ अब पढ़ता है. There's a big shift and movement away from the actual text towards what people believe its interpretation is. Right. And I think really understanding that with scholarly people would be something that could really help women. But also, अगर आप economy की बात करें, इसी ही point पे मैं हर किसी आदमी को कहती हूँ आपकी इनकम डबल करेगी if you get double the amount of women into the workforce, क्योंकि आपकी GDP डबल होगी. And this affects everyone. It is positive for everyone. But there's a big resistance from societally, religiously, both. Do you suspect कि अब वो change करेगा due to economic reasons because women are being forced out into the workplace regardless of culture? जो cultural blockages थी या रुकावटें थी वो हट रही हैं. For example, urbanization जिस तरह बढ़ती जा रही है तो जो बड़ा फैमिली यूनिट था ट्राइबल या जॉइंट वाला वो आस्ता आस्ता एक सिंगल फैमिली यूनिट होम्स पे आ गए हैं where you now see an increasing amount of young people जो are not married or married और वो रह रहे हैं शहर के अंदर and they're working jobs. क्या इकोनॉमिक हालात फोर्स कर रहे हैं to people to come out of those norms, do you think, and the legislation or the law is trying to catch up to that? नहीं, I personally मुझे इसका इल्म नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है. Right. और मैं माइग्रेशन डेटा स्टडी करने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, बट कोई माइग्रेशन डेटा पंजाब का नहीं है. बिकॉज आई वांटेड टू सी कि पंजाब में कितनी सिंगल औरतें
काम कर रही हैं जो कि लाहौर से बाहर आई हैं टू लाहौर एंड देन फ्रॉम आउटसाइड मतलब पंजाब टू पंजाब। कसूर का इटसेल्फ का एक डेटा लिए जाए कसूर से लाहौर कितनी ख़वातीन आती हैं डोमेस्टिक हेल्प की शक्ल में, और हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सो आई वाज ट्राइंग टू सेट अप हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन बिकॉज ऑफन मेरी जो एम्प्लॉयज़ आती हैं शहर की उनके पास सेफ लिविंग कंडीशंस नहीं होती, तो वो कहती हैं कि हम जॉब नहीं ले सकते। सो आई वाज ट्राइंग टू सेट अप अ वर्किंग वुमेन हॉस्टल एंड टू सी द डिमांड बट देयर इज़ नो डेटा। सो आई कांट से बट एनेक्डोटली जो मुझे पता है लोग ज़्यादातर जॉइंट फैमिली यूनिट्स में रहते हैं, विलेजेस में तो 100% जॉइंट फैमिली यूनिट्स में रहते हैं। नहीं, मैं वाज टॉकिंग अबाउट अर्बन जो एक सेटलमेंट का मामला हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ, आई मीन आपके अगर मिल में इजाफा कर देता हूँ, commodity in terms of being a hot commodity, जो hostel है ना, working women hostels, they're very popular. If you provide like good security, you know, सुबह का time, शाम का time, closing, blah blah blah, there's a guard, there's lunch and breakfast and whatever, they're very popular because women do not prefer staying in a flat complex or an apartment लोग उनको complex रेंट भी नहीं करते because उनको लोग रेंट नहीं करने देते. It's very hard to in some areas you have women only apartment complexes, एक आधा है लाहौर में, and then you have women specific hostels because again income bracket ऐसी होती है कि you can't really afford a full apartment. You would much prefer like room sharing करके या कोई hostel situation में रहने के लिए. That's a viable functional model to finance this operation, by the way, as well. I know, and I've actually developed a feasibility on this. I've given it to Sufyan. But so there's a big model for this, and the government has set up 6 working women hostels, but it's a city of 11 million people, 5 million women. So इसमें से assess भी करना, हमने 100 hostels narrow down किए हैं, उसमें से हमने 40 visit किए थे, 40 के 40 at capacity चल रहे हैं और उनकी wait list like चंद महीनों की चल रही है. Right, there's a big wait list, by the way. There's a huge wait list. Hostels में there's a big problem of like, and also hostels के अंदर एक और issue आता है of background checks. Even in hostels आपको काफ़ी ज़्यादा अपना डेटा सबमिट करके किसी रिश्तेदार की गारंटी शो करनी होती और है, एम्प्लॉयर की गारंटी या एम्प्लॉयर की गारंटी, एंड दैट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द केस जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको गारंटी दे रहा हो. मे बी यूर कमिंग टू लुक फॉर वर्क और यूर कमिंग एंड वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेटिंग जहाँ पे एम्प्लॉयर गारंटी दे नहीं सकता आपको, इट्स जस्ट सम हाउस होल्ड और समथिंग. The conditions I've seen in hostels are really bad. मतलब some are okay, but ज़्यादातर like hostel wardens लड़कियों को मारती हैं, वो उनके employers को complaints देती हैं. तो this is, but to kind of loop back to the point of whether, you know, households are breaking up and things like that, we don't have data on that. I think more women खुद चाह रही हैं कि हम workforce में शामिल हों और हम अपनी खुद इनकम हासिल करें ताकि हमें ये फॉर एग्जांपल अब्यूसिव रिलेशनशिप्स वगैरह हम निकल सकें. बिकॉज अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो वो कैसे निकलेंगी अब्यूसिव रिलेशनशिप से? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो. बाप भी कहता है रहो शौहर के साथ, शौहर उसको मतलब कम से कम पैसे दे के साथ रखता है. What about in the cases of where women are earning? Are they able to keep their incomes to themselves? सो इन अ लॉट ऑफ केसेस ये औरतें मिस्टेक करती हैं कि वो जॉइंट अकाउंट्स बना देती हैं या वो हस्बैंड को लोन दे देती हैं या हस्बैंड कहता है कि मैंने प्लॉट खरीदना है अपने जेवर बेच तो मैं प्रॉमिस तुम्हारे नाम में प्लॉट कर लूँगा. नहीं करता, वो जेवर बेच भी देती है, प्रूफ भी नहीं है. तो सारी कैश ट्रांजैक्शन होती है, सारी कैश ट्रांजैक्शन होती है. तो फिर कोर्ट में जब हमने प्रूफ देना होता है हम उनकी शादी की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं कि भाई ये ज्वेलरी पहन रही थी और अब ये नहीं है, और अब ये नहीं है. तो वो तो कहता है उसने ले लिया, उसने बेच लिया. Right. Because there's no proof of transaction. It's a game of he said, she said then. Right. So I say this to all the women that come to me कि भाई आप अपने resources अलहदा रखें. So sexual hygiene, sexual and reproductive rights, individual rights, financial training, you have a big task ahead of you, man. Because legal aid alone कुछ नहीं ठीक करेगा because system is broken. So without education, without legal awareness and without training of officials, legal aid is not sufficient. What about there is an element of sort of paratrooping into domestic issues. There's a lot of complaints and I'm going to air out the complaints जो लोगों की NGOs के साथ होती हैं usually कि the NGO is, you know, it's browbeating और वो holier than thou position से आ रहा है and it's interfering in our society और हमारा social fabric और mold बदल रहा है, you know. मैंने earlier भी इसको एक mention किया था आपके सामने कि जो थोड़े गिमिकी से एफर्ट्स होते हैं कि लाइक women in public spaces, let's all hang out at a chai dhaba or let's all play gully cricket or we'll do a bike ride. Do these things help or are these things
effective in just galvanizing a particular social class. यानी क्या ख़वातीन को externally introduce करना upper class women, because it's not just like a feminist, like a sex and gender issue, औरतों और मर्दों के दरम्यान, it's also a class issue. क्या upper class ख़वातीन का एक bike ride करना on the main boulevard in Gulberg, or to introduce them into a chai dhaba or a cafe, do these things end up getting you funds, getting you, like, I don't know, acknowledgement from the government? कोई tangible benefit होता है इन चीज़ों का, or is it because I feel like these things end up harming actual women's rights issues, कि जो लोग जिनके attitudes बुरे होते हैं towards these things वो double down करते हैं फिर, because they feel like they're being slighted by some sort of imposition, a cultural imposition perhaps. Like आपने I think 2 सवाल पूछे हैं. पहला आपका सवाल था about the nature of NGOs interfering within a domestic space. जी. और फिर आपका social fabric अगर allow करता है कि आप अपनी बीवी को कुटें और इतना कुटें कि वो मतलब चल भी नहीं सकती, उसके पास आप ना तो उसको खर्चा देते हैं, बच्चे का ख्याल भी रखती है, घर का ख्याल भी रखती है, खर्चा आप कुछ नहीं देते, दूसरी बीवी रख ली है. अगर आपका सोशल फैब्रिक इसको अलाउ करता है तो आई थिंक कि एनजीओ को आके इसको बदलना चाहिए. कोई मसला नहीं. अगर कोई औरत मेरे पास आए और मुझे कहेगी कि मेरा शौहर मुझे कुट रहा है, मैं चल नहीं सकती, मेरी आंख फटी हुई है, मेरा मुंह कटा हुआ है, मैं उसको कभी नहीं कहूँगी कि हाँ your social fabric is I will say no. Listen man, the fabric of society and ये blah blah blah, fair enough. I'm going to say I will help you irrespective. I just want to know what happened. मुझे अपनी कहानी बताएं. उसके बाद जो वो सुनाता रहेगा, ठीक है, ट्रायल में देखेंगे. पर पहली बात तो ये है कि मैं किसी को access to justice दूँ ताकि उसको पता है कि ये is not acceptable. Nearly everyone I know, and I don't know the statistics on this, but people are very unhappy with the relationships they're in क्योंकि baseline उनका इतना कम है. And जो आपने second point about introducing women किया है, so it's an interesting point and I think इस पे मेरे 2 thoughts हैं. पहला मेरा ये thought है कि अपने own experience से जब मैं कोर्ट जाती हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी जाती हूँ, ट्रायल कोर्ट में भी जाती हूँ, और बहुत एक तो स्पेस बहुत मेल डोमिनेटेड होती है. yes. इतने ज़्यादा आदमी होते हैं, वो ना तो औरतों को जगह देते हैं कि भाई कोई प्रेग्नेंट औरत आ जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कोई बैठने की जगह हो. फिर वो मुझे कभी कभार नहीं, वो इंसान तो नहीं होते, वकील होते हैं ना वो. सो बट देन आई आस्क्ड देम, यस एग्जैक्टली, और औरतें भी वकील. तो मैंने कभी कभार पूछा कि भाई ये औरत खड़ी हुई है, कोई कस्टम्स ऑफिशियल आई हुई हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल है. तो मैंने कहा प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा बैठने की जगह दे दें. तो आदमी मुझे कह देता है कि बट इक्वालिटी मीन्स लाइक हम दोनों को बैठने की जगह मिलनी चाहिए. तो मैंने उनको इस बात पे कहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन किसी वजह से है, इक्वल स्पेसेस नहीं हैं. आप कोर्ट में देखें, सब जगह मर्द खड़े हुए हैं, अगर मैं खड़ी हूँ उनके बीच में, मैं बिल्कुल सैंडविच स्क्विश हो जाती हूँ. तो आई फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, इसलिए मुझे बैठने की ज़रूरत चाहिए. आई एम सॉरी, इफ़ आई एम अ फीमेल, आई नीड द स्पेस. सो to go on to the injection of women in these issues, in these public spaces, I think both points are relevant. कि पहले तो जो आपने कहा है ना upper class की, जब तक कि ये upper class जो अपने आप को कहलाती है पब्लिक स्पेसेस में इंट्रोड्यूस ना हो और फोर्सिबली इंट्रोड्यूस हो, जैसे कि मेट्रो पे और बसेस पे, आपके जो भी मसाइल है सोसाइटी में ये नहीं हल होंगे. जैसे कि आपका स्मॉग, until the upper class gets onto the metro and gets onto the buses, we're not solving this problem because everyone wants to stick to their poor fuel cars. As a simple calculus of resources, अगर upper class के पास वसाइल हैं, in that they can introduce themselves externally into public spaces, ख़वातीन के केस में, so be it. That's your argument, right? But I will say that even that's one thing on the upper class. But on the second point, should there be a day for playing cricket or for driving on the mall in your pink bike? I think this should not be limited to class. It should be everyone. There should be a day कि भाई औरतों का ये दिन है, वो आके माल पे गाड़ी चलाएंगी या मोटर बाइक पे आएंगी, क्योंकि हमारी पब्लिक स्पेसेस औरतों को नहीं प्रमोट करती और वो सेफ ही नहीं फील करती कि मैं आके पार्क में बैठूं या मैं आके बाइक चलाऊं. सो आई थिंक इट इज़ नेसेसरी to do things like this that may feel a bit gimmicky from the perspective of a male, but and from the perspective of maybe certain, a lot of women also find them gimmicky. Lot of women. But I think both are important. एक तो आप on the ground काम करें and then दूसरा आप थोड़ा सा
ये एफर्ट्स भी करें, बिकॉज एज अ फीमेल वर्किंग इन लिटिगेशन आई कैन से कि बहुत स्पेसेस मेरे लिए अनकम्फर्टेबल होती हैं। तो मुझे लगता है कि औरतों को सर्टन स्पेसेस इंकरेजमेंट के तौर पे कि भाई आप आज निकलें इस रोड पे, हम बाइक्स चलाएंगे। सो इट्स मोर कि लाइक मैं नहीं कह रही कि फॉरेन एनजीओ करना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि ये विद इन आना चाहिए, अब हमें खुद करना चाहिए हुकूमत की तरफ से या वुमेन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Right. So the gimmicky nature of them notwithstanding, there is, आप कह रही हैं कि as a woman, there is, you felt कि there is a need for these things. आपने जब public spaces की बात की, सर आपने courts की बात की, कि perceptively ही ख़वातीन जब एक public space में आती हैं, they feel very claustrophobic because of the male gaze, physical presence जो होती है opposite gender की, definitely उसकी भी एक imposing presence होती है, और नंबर्स भी मैटर करते हैं। एंड आप उनको आर्टिफिशियली बल्क अप नहीं कर सकते कि 50-50 हो जाएं औरतें मर्द, तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन आपने जिक्र किया है, कानून में है। अब जिनको नहीं पता, एक तो उनके लिए एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस में कि अफर्मेटिव एक्शन से मुराद यहाँ पे क्या है, एंड व्हाट डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन नीड्स टू टेक प्लेस टू इंक्लूड वुमेन इन दी पब्लिक स्पेसेस, यानी और कंफर्टेबल करने के लिए उनकी इन्वायरमेंट को। सो अफर्मेटिव एक्शन का ये मतलब है कि अगर एक स्पेसिफिक सोसाइटी का सेक्ट है जो कि मार्जिनलाइज्ड है या उसको अपने हक नहीं मिल रहे, आप उसको प्रमोट करने के लिए या इक्वालिटी लाने के लिए उनके लिए थोड़ी सी स्पेस रिजर्व कर लें। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स हैं फॉर वुमेन, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन एज एन एग्जांपल, बिकॉज औरतें नॉर्मल इलेक्शन में उनका एक्सपोजर ही नहीं होता। अब दो इट्स चेंजिंग एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग कि वो जनरल इलेक्शन में लड़ रही हैं, बट तारीख में औरतें पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में कभी नहीं लड़ती थी क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं है। फिर चार दीवारी का मसला, पर्दे का मसला, एंड दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग आउट टू द इलेक्ट्रेट। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। एंड आई थिंक कि कोर्ट्स में भी अब अगर आप ऑरेंज लाइन मेट्रो को देखें, वो भरी हुई होती है और उसकी एक सेपरेट वुमेंस कैबिन होती है, वो जो कि चौका ब्लॉक होती है किसी भी आवर दिन पे। मैंने वुमेंस कैबिन में मैं नहीं गई, मैं दूसरे कैबिन में गई थी एंड इट वाज ओके, बट मैं कहती हूँ कि ऐसी स्पेसेस, फॉर एग्जांपल कोर्ट्स में एक बेंच होना चाहिए रिजर्व फॉर वुमेन टू सिट ऑन इन पब्लिक स्पेसेस, इन पब्लिक स्पेसेस। तो देयर शुड बी स्पेस कि वुमेन की जगह हो, और जब आप इनकरेज करेंगे औरतों को कि आप भी निकलें, does it have to be pink? And definitely does not have to be pink. It can just have a sign saying women's Right. bench. It can But I feel like the pink takeover शायद वो like it's become offensive to the eyes, like थोड़ा सा it's become of an eyesore, like everybody's like अच्छा हो ये वो वाली, like pink parking and pink petrol station पे line या pink cabin for women. The first time I saw a separate cabin for women India में था in 2011 I went to India, तो वहाँ पे जो overhead metro चलती है दिल्ली के अंदर, they had a separate cabin for women, and I saw a lot of pink washing, let's call it, everywhere for women. But then I found out that Delhi is the rape capital of the world, not just India. That was very shocking and horrifying for me because बहुत close cultural association थी, because वो पंजाब type खुला डुला culture था, खाना पीना very similar. So that makes me rethink this public spaces वाला as an individual. मुझे होता है कि मैं शक में पड़ जाता हूँ about these things कि यार I don't think this stuff really works. ज़्यादा सीरियस चीज़ों के ऊपर फोकस करके, बिकॉज अगेन एक स्ट्रॉ मैन कंप्लेंट होती है बट होती सही है, एक औरत मार्च वगैरह होती है तो लाइक ओ जी आप क्या अबॉर्शन और फलाना और LGBT राइट्स की बात कर रहे हैं, आप औरतों के इश्यूज़ की बात क्या करें। एंड दिस इज लाइक एन आर्ग्यूमेंट जो बनाई जाती है उनके खिलाफ कि आप एसिड विक्टिम्स की नहीं बात कर रहे, इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहे, सेक्शुअल अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली जब उनकी भी बात करेंगे तो उस पर कोई और बेंचमार्क गोल पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा। But do you think कि is there a laser focus for शहर at least on 3-4 मोटे issues, or do you think कि simultaneously ये चीज़ें भी address होनी चाहिए? So मैंने आपको पहले भी ये अर्ज किया था कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो ऑन द, जो आपने दिल्ली का एग्जांपल दिया है, ऑन द ग्राउंड समवन नीड्स टू बी टैकलिंग, गवर्नमेंट को ये रेप केसेस टैकल करने की ज़रूरत है। तो ये मुआशी तौर पे, हुकूमत के तौर पे, अदालत में these cases have to be tackled. And side by side जो spaces आप औरतों को पब्लिक में दे रहे हैं वो भी होना चाहिए। तो आप एक साइड पे आप केसेस को डील कर रहे हैं and you're actually fixing the systems ताकि वो औरतों के लिए महफूज हों।
दूसरी साइड पे आप पब्लिक स्पेसेस को उनके लिए स्पेसिफिकली डेजिग्नेट कर रहे हैं ताकि और औरतें बाहर निकलें. The International Labour Organization did a study about 10 years ago, 2011, so more than that, on कि what are the main reasons कि औरतें लाहौर में काम पे नहीं आती. Why do they not want to leave the house? And 72% of the women said कि हमें transport पे harassment face होती है. So then I thought hostels is a good way to bridge that gap कि आपको commute ना करना पड़े. तो अगर आप You live close to where you work, where right? You can walk there or whatever. Exactly. Yeah. So that's one of the things. So this is the problem is that and that's this we're talking about a lot of different issues because they need to be addressed at बहुत the ज़्यादा root चीज़ें हैं level. तो yeah. But then to say about what the शहर kind of laser focus in, I think that हमारे जो cases हैं, our cases are our baseline and our cases focus on, let's say, mainly domestic violence, and domestic violence can be the form of कोई बंदा आपकी विरासत छीन ले. That counts as violence also, economic violence. So our cases are our baseline. But हम उन cases को लेके अगर हम isolation में चलें कुछ नहीं होगा because system में Right, structural change की ज़रूरत बहुत होती है. gaps हैं. तो अगर मैं अपना एक individual case ले लूँ और इस बंदे के खिलाफ FIR रजिस्टर करवा लूँ for this rape for example जो मैंने आपको शुरू में उसकी कहानी सुनाई है. What about the next woman जो कि अंदर आएगी जिसका FIR रिजेक्ट होगा और उसका मेडिकल रिजेक्ट होगा. then what is the point अगर मैं अपना ही केस लेके करूँ. So the idea is कि हम अपने हर केस से कुछ strategic changes लाएं. There's strategic litigation which is through the court and फिर there's strategic liaising with the government to implement the changes. So that they have attitude changes. उन्हें पता है कि when X type का केस आता है they have to behave in Y या Z तरीके से उन्होंने behave करना होता है, right? Because attitudes की भी बात होती है कि every time a woman's going to come up, every time they're going to be like कि medical case क्यों आपका करवाना है, आप magistrate से लेके आए, like in the case you mentioned. And on the main and the last thing, which is where like podcasts like this or coming on speaking at universities, the reason I do this is because I think it's so important कि लोगों को awareness कैसे spread करेंगे, attitudes, mindsets में changes कैसे आएंगी अगर ये conversations ही ना शुरू हों. Right. So that's also the third most important thing. We live in the era of Me Too, right? And जहाँ रेप की आपने बात की है, जहाँ DNA की पोटेंशियल होती है, ऐसे जराइम को पकड़ने का चांस होता है. Me Too एक ऐसे ग्रे एरिया के अंदर था, अगेन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल क्राइम्स के एतबार से कानून एडवांस्ड है और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एड्रेस करते हैं इसको. तो वो एक माइनूशिया में उसके उतर गए माशरे के तौर पे. एक माशरे की तरफ से एक ऑर्गेनिक डिमांड आई कि वर्क प्लेसेस में और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में जो ख़वातीन को हरास किया जाता है, इट वाज स्लाइटली लेस देन लाइक डायरेक्ट रेप्स. इट वाज मोर अबाउट, राइट, इफ मैं मिसकैरेक्टराइज तो नहीं कर रहा ना, बट मी टू वाज मोर अबाउट डिस्कम्फर्ट टू वुमेन इन अ सेक्शुअल कॉन्टेक्स्ट एक वर्क प्लेस के अंदर, all the way up to assault, but not entirely because assault के केसेस जो हैं वो तो फिर रेप के ज़ुमरे में आ जाते हैं और वो तो कानूनी कार्रवाई बन जाती है. तो ये ग्रे एरिया जो है उसका स्पिल ओवर हमें यहाँ पे भी नज़र आया, राइट? यू हैड वेरी हाई प्रोफाइल केसेस में, जिक्र नहीं करता वो सेलिब्रिटीज़ मेड एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर. वर्क प्लेसेस में आपको नज़र आया, स्कूल्स में नज़र आया, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये इल्ज़ामात लगे प्रोफेसर्स और टीचर्स वगैरह पे. ये ग्रे एरिया कैसे एड्रेस होता है डू यू थिंक इन द फ्यूचर? बिकॉज ये सिक्लिकल है मेरे ओपिनियन के अंदर. ये अभी एक वेव थी मी टू की 5 साल पहले, आई थिंक ये दोबारा आएगी बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग अवे एनीवेयर. होता कुछ नहीं है उनके बारे में. तो ये सिक्लिकल जो नेचर है ऑफ मी टू की रिपोर्टिंग हुई, ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया, फिर 2-4-5 साल कुछ अरेस्ट भी हो गए, कुछ केसेस भी चले पाकिस्तान में जैसे मुल्कों में भी चल गए, अमेरिका में तो चले ही चले, यूरोप में तो चले ही चले. ये परमानेंट एड्रेसल कैसे होगा इसका? क्योंकि विमेन इन द वर्क प्लेस इज़ अ न्यू फिनोमिनन, कहीं 50 साल पुराना है, कहीं 100 साल पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं है ऑफ अ न्यू सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विमेन एंड मैन वर्किंग इकट्ठे एक विसिनिटी के अंदर. तो मी टू वाला जो एक रेल्म है ऑफ क्राइम्स और उसकी रिपोर्टिंग, वो किस डायरेक्शन में जाएगी एंड व्हाट डू यू थिंक the future is like that उन चीज़ों के लिए? I think Me Too पाकिस्तान में is different to the rest of the world because जिस मुल्क में मैं आपको बता रही हूँ कि physical evidence, medical evidence है और वहाँ भी cases नहीं चल रहे, तो अगर आप किसी को कहेंगे my boss touched me, you don't have any proof.
उसके बगैर वो आपको इतना मतलब मैं ऑम्बड्स पर्सन के सामने केसेस करती हूँ, एक वर्क प्लेस ऑम्बड्स पर्सन बनी जी, है, जी। विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट एफर्ट कि आप पहले कशमाला तारक थी, अब मेरा ख्याल है आप मिस नबीला हाकिम इज़ द न्यू ऑम्बड्स पर्सन, एंड वहाँ एटलीस्ट आप किसी फोरम पे आके औरतों के जो मसाइल हैं आप उनको एयर डिस्कस कर आउट कर सकते रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ प्रेशर मतलब ऑन द कंपनीज एंड ऑन द मैन इज़ बीइंग प्लेस्ड. दैट बीइंग सेड, अभी तक मेरा कोई पॉजिटिव वर्डिक्ट नहीं निकला 3 साल में. सो द प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ कंट्री इज़ वेरी स्पेसिफिक, एंड आई थिंक कि आपको हर किसी मुआशरे में शायद फेक क्लेम्स भी मिलेंगी, and I'm not denying that there can be cases, but that is the job of the court to find out through evidence. But the problem is जो हमने अपने केस की मेरे केस की भी बात की थी, जो बिजली काटती, बहनोई को जेल में डाल दिया, अब इतना प्रेशर डालते हैं औरतों पे इस मुल्क में. तो मैं कहती हूँ अगर कोई औरत आके कह रही है कि मुझे हरास किया गया है, वो क्यों करती? वाई वुड शी कम आउट एंड से दिस इन फ्रंट ऑफ एवरी वन? बिकॉज उसका ही नाम बदनाम होगा, सब उसको कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो. इस मुल्क में जस्टिस ऑब्टेन करना औरतों के लिए बहुत मुश्किल है. मैं हर रोज़ इसको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाई वुड you come out and do this, right? बिकॉज एंड आई थिंक कि women felt जब ये मी टू हो रहा था, लाइक in the United States, Harvey Weinstein was originally accused of all the sex crimes. It started a movement. His was sexual abuse and rape in Straight other up, cases. जी, rape था. And you know he was arrested. But I think पाकिस्तान में लोग emboldened हुए थे based on what was happening globally. अब इट्स नॉट कि अभी हरासमेंट कम हो गई है या नहीं हो रही. मेरे पास केसेस आते हैं तकरीबन आई थिंक हर महीने में 2 से 3 आते हैं, बट उस पर कानूनी कार्रवाई पेशरफ्त नहीं हो पाती, बहुत आहिस्ता होती है. इवन दो ऑम्बड्सपर्सन इज मेंट टू बी एन एक्सपेडिशियस रिड्रेसर, बट जब तक कि ऑम्बड्सपर्सन के पास वो औरत पहुंचती है उसको तो नौकरी से निकाल दिया गया होता है. बाय राइट, रफा दफा हो गया था मामला. शी इज फायर्ड क्योंकि they don't want her to take the complaint forward, so just fire her. So I think there's a real problem of women being harassed in Pakistan. It's very real. But I think it's in spectrum पे आप देखेंगे. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जहाँ पे रेप को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तो वो ये छोटे मोटे मतलब कोई वर्बल या फिजिकल कोई अब्यूज़ की केस हो, कोई टच की बात हो, ग्रोपिंग की बात हो, तो वो तो मतलब हंसी मजाक में टाल दी जाती है. ये एटीट्यूड जो है आपने आइडेंटिफाई किया कि और वो यहाँ पे एक पॉजिटिव के तौर पे आपने कहा कि अगर यार इतने प्रेशर के बावजूद अगर औरतें रिपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कुछ है वहाँ पे, विच इज़ अ फेयर पॉइंट टू बी मेड. आई थिंक ये एटीट्यूड की सोर्स क्या है कि जहाँ पे द माइंड इमीडिएट, इफ यू एवर आस्क एनीवन ऑन द स्ट्रीट, बाय द वे ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आई हैव नो डेटा टू बैक दिस अप, लेकिन आप किसी से पूछो तो वो कहते हैं झूठ बोलती हैं जी औरतें, इल्ज़ाम लगाती हैं. ये एटीट्यूड, हैव यू एवर ट्राइड टू सोर्स दिस इन लिटरेचर, इन रिलीजियस थॉट? कहाँ पे जाके ये कल्चरल फिनोमेनॉन डेवलप हुआ है कि साउथ एशिया में जनरली एटीट्यूड मैंने देखा है टुवर्ड सेक्सुअल क्राइम्स वो ये होता है कि जी झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं. इवन बच्चों के केसेस में बच्चे जी एग्जैजरेट करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, झूठ बोल रहे हैं. वेयर डज दिस कम फ्रॉम? Like, have you identified, is this instinctual in the culture? कोई is there some literature we grow up with? कोई story books में हमारी कोई ऐसी चीज़ है? In some mythology, you know, को भी होता है ना किसी culture में. Like, I'll give you a weird obtuse example. Kyrgyzstan में Manas is a national epic. So in that, the Manas character, he abducts a woman and marries her. So they have a weird culture of bride kidnapping. यानी कि रिश्ता भी होगा एक मर्द और औरत का, तो उसको शादी करने के लिए किडनैप ही करेंगे. और उससे बहुत ट्रॉमा कॉज होता है ऑब्वियसली औरतों को. आप चाहे रजामंदी की शादी कर रहे हो, टू बी किडनैप्ड इज अ हॉरिफाइंग यानी प्रोस्पेक्ट. तो दे कैन सोर्स इट बैक टू अ नेशनल एपिक, राइट, कि ओ ये या हमारे बड़ों का कल्चर है, व्हाटएवर. वेयर डज दिस थिंग कम फ्रॉम कि औरत झूठ बोल रही है, इसका इल्ज़ाम झूठा है, ये सेक्स क्राइम नहीं हुआ यहाँ पे? हैव यू लुक्ड इनटू दिस? कोई एविडेंस है आपके पास या कोई सेंटिमेंट कहाँ से आ रहा है, या ये मैं गलत बता रहा हूँ कि ऐसा सेंटिमेंट ही नहीं है? नहीं, ऐसे सेंटिमेंट डेफिनेटली है. मैं कोर्ट्स में भी एक्सपीरियंस करती हूँ सेंटिमेंट, जजेस के साथ, पुलिस के साथ. एंड आई थिंक जनरली आपको पता ही होगा हमारे माशरे में फ़ेक मुकदमों का जो कि इतना ज़्यादा ट्रेंड है, एपिडेमिक है, इट्स एन एपिडेमिक. सो द नंबर ऑफ फेक FIRs, सो देन जब आप हर किसी के खिलाफ फेक FIR कर रहे हैं तो आपका, अगर आप सोचें लॉजिकली, आपका वही माइंडसेट होगा ना कि औरतों के साथ भी फेक ही हो रहा है. राइट. That I personally think that's it. I don't have any data to support this, and nor do I go and ask these men because frankly ज़्यादातर मेरी energy
औरतों की तरफ होती है कि Fair भाई enough. इनका केस लड़ूं, बट जो मैं देखती हूँ और मैं जजेस से भी ये पूछती हूँ कि आपको क्यों लगेगा कि औरत आके अपनी, जो कि आप इज़्ज़त की बात करते हैं, वो अपनी इज़्ज़त आपके सामने आके क्यों ख़राब करेगी, अपनी जान क्यों अजाब करेगी, हर रोज़ कोर्ट के धक्के खाने क्यों करेगी अगर कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है, देहात में तो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, फेक रेप का केस बनाते हैं। ऐसे चलें, वो तो देहात की बात थी, ठीक है, लाहौर में वो अर्बन सेंटर में क्यों हो रहा है ये? देहात में आपसे फैमिली कर चला है। सो दैट्स अ होल फ्रिवलस केसेस बेसिकली यू थिंक कि वन ऑफ द एलिमेंट्स इज कि क्योंकि बहुत फ्रिवलस केसेस बनते हैं, सो द सेम एटीट्यूड एंड्स अप विद लाइक सेक्सुअल असॉल्ट के, और ये भी मतलब कोई फैमिली को फाइटिंग है, कोई इन फाइटिंग होगी है, कोई यू नो, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफेंस। एक बहुत पॉपुलर केस अगर मैं नाम ले ही लूँ, इफ यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, तो अली जफर और मीशा शफी का केस, इट्स वेरी पॉपुलर, देर बोथ सेलिब्रिटीज, ऑल्दो उनके स्टारडम में थोड़ा सा फ़र्क होगा, मे बी अली जफर इज मोर पॉपुलर और बिगर स्टार के जो भी। सो द एटीट्यूड वाज ऑनलाइन विच आई नोटिस्ड के ओ ये तो सिंगर है, ये तो कंजर है, यू नो दिस, ये भी तो एक एटीट्यूड का हिस्सा है कि ये तो परफॉर्मर है पब्लिक, इसको तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसने अली जफर पे लाइन मारी होगी, अली जफर इज नोन एज अ लेडीज मैन, व्हाटएवर। आई एम नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व द केस, ठीक है, बट माई पॉइंट इज के व्हाई वुड अ सेलिब्रिटी लाइक दैट यू नो मेक द एलिगेशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, और इसको हम कोर्ट्स में कैसे ट्राई करते हैं? अगेन ये मुझे डेफमेशन का केस आ जाएगा, बाय द वे अली जफर से इज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, बट and there are several, organizations like UN Women. UN Women had put Ali Zafar as a women's ambassador, and then they received complaints from other women who then they had to remove Ali Zafar as an ambassador. right. So I have to say that on this particular issue, obviously, I'm not I've asking your only- opinion about the particular issue. I'm saying the attitudes towards that issue. So the attitudes towards the issue, again, I think it boils down to the same thing कि आपके मुआशरे का क्या एटीट्यूड है। आपका मुआशरा कहता है कि औरतें केसेस, they, like for example, you had an ex-prime minister who once said that women are often raped because of the way they dress. So Did he there's- really say that? इस तरह नहीं कहा था. I think it was something to the You may effect of. correct me. What did he say? Was it सलमान ने वो क्या कहा था इमरान खान ने कि like अगर औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी तो मर्दों को वो से something goofy. फूल की खाली He didn't say fool. He said something like कि मर्द रोबोट नहीं होते. Something like कि अगर वो ऐसे, he didn't imply कि they rape because of it, but he said कि they will be sexually attracted or aroused by these women if they dress a certain way. And that's a statement that requires an apology, I will have to say. But on another note, I will say that bhai, there's a general victim blaming mindset in our society. कि she asked for it, she did something to have this done to her. तो ये कहाँ से आता है? उस मतलब एक तो आपका है कि फेक है, शुरू से आप कहते हैं Fake फेक वाला है, तो यहाँ। तो वो पहली बात हो गई। फिर उसके बाद के I guess it, I don't know, I think it comes from insecurity. You and I grew up in the same society in different parts of it. आप कराची में पले बड़े, हम लाहौर में, and I meet like-minded people all the time, different social classes से, different religious backgrounds से, different cultural backgrounds से, पंजाबी, सिंधी, पठान, all of these. ये ओवरआर्किंग मुआशरत हमारी कहाँ से आ रही है जहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग होती है? आई नेवर ग्रू अप विद विक्टिम ब्लेमिंग, माई पेरेंट्स नेवर टॉट मी दैट, हमारे इर्द गिर्द ये सब नहीं था. वेयर डज दिस कम फ्रॉम? कहीं स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई पब्लिक सेंटिमेंट्स में? मस्जिद में आई वेंट टू द मस्जिद, आई स्टडीड इन अ मदरसा, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखी वहाँ पे. बाय द वे आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है. मतलब अगर कोई क्लास या प्रिविलेज का मसला है तो मुझे चेक करके बता दें कि शायद मतलब मेरी सोशल क्लास में ऐसे नहीं है. नहीं, But- हमारी सोशल क्लास, और आई गेस नॉट हमारी, बट आई सेड आपकी सोशल क्लास, और व्हाटएवर सोशल क्लास रेफरिंग टू अपर क्लास एंड लोअर क्लास और मिडिल, I think even in all of these classes you experience victim blaming Right. in every class. It's not a class issue, no, right? because women are raped in burqas. Yes. So that's not, I don't have the answer to that question. बिकॉज मुझे नहीं समझ आती, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत शॉक करती थी कि मतलब बचपन में जब वो अखबार में जिस तरह कोई रेप या मोलेस्टेशन का केस आता था ना, एक मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, एंड लाइक यू रेड इट एंड आई इमीडिएटली वुड से कि ओ ये हुआ है, तो आई वुड नेवर इन माई माइंड बी लाइक ओ व्हाट अ फेक सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है, एंड
ये औरत झूठ बोल रही है, एंड माई इंस्टिंक्ट वुड नेवर बी, इवन दो आई एम श्योर द बायस टुवर्ड्स गिल्टी इज नॉट अप्रोप्रिएट ईदर, बट माई बायस वुड ऑब्वियसली, यार औरत कह रही है, सही कह रही होगी, झूठ तो नहीं बोल रही होगी. ऑल्सो किसी भी केस में जब कोई इल्ज़ाम लगता है फिर आपको केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो ये भी नहीं होता ना कि आप किसी भी कोई किस्म की एविडेंस के बगैर कहें. बट इफ़ समवन हैज़ ग्रोप्ड यू इन अ वर्क प्लेस, इट्स मच ईजियर फॉर मी टू शो कि आपने मुझे इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं, क्योंकि वो उनकी प्रूफ होती है. बट फॉर टचिंग यू कांट रियली शो इफ़ देयर इज़ नो CCTV फुटेज. सो आई थिंक इन जनरल हमारा सिस्टम औरतों के खिलाफ स्टैक्ड है. So in general, if a woman comes and speaks up, I'm inclined to take her story as a starting point and then see after that. And जहाँ gaps होती हैं और inconsistencies होती हैं, या मुझे लगता है कि for example मोहल्लों के भी मसले होते हैं जो कि domestic violence में आते हैं कि जेठ ने मारा. So then I often say कि आप क्यों अपना मुंह लगा रही हैं इसके साथ. आप अपने घर में रहें, आप बाहर जाके गली में क्यों जाके उनकी गालियाँ सुनती हैं. Right. So there are cases where you can see the other side is getting involved also. But in cases of abuse and domestic violence, I think there's a big force disproportion. What the man can do to the woman versus... वो lopsided होता है, काफ़ी वाज़ेह होता है कि मर्द ही परपेट्रेटर है, और वो राइट, फेयर इनफ. आपने यहाँ जिक्र किया टेक्नोलॉजी का कि CCTV हों तो टेक्स्ट हों, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम दुनिया में आ रहा है कि जो ग्रोपिंग और वर्बल हरासमेंट के केसेस हैं वो पकड़े ही नहीं जाते, बिकॉज इट्स लाइक लिटरली इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट. वहाँ पे आपने कहा कि एटीट्यूड अगर चेंज हो कोर्ट्स का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, तो दिल बी मोर लाइकली टू मेक सेंस ऑफ द स्टोरी जो औरत की है, एंड दिल बी मोर ससेप्टेबल टू लिसन टू इट एटलीस्ट. और जहाँ गैप्स होंगे, जैसे आपने खुद फरमाया एज अ लॉयर जहाँ पे NGO चला रही हैं, आप खुद गैप्स को कैच करके डिसमिस भी कर देती हैं कि यार ये चीज़ फ्रिवलस है, तुम जो बात कर रहे हो. आज की टेक्नोलॉजी की जहाँ फ़वाइद हैं, टेक्स्ट मैसेजेस ट्रेस हो जाते हैं, वॉइस नोट्स, कॉल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वहाँ साथ ही साथ एक और बड़ा एपिडेमिक ख़वातीन को आ रहा है अर्बन सेटिंग्स के अंदर, कि उनकी कोई भी प्राइवेट सेक्सुअल कंटेंट जो होता है, उनकी वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह, वो लीक हो जाती हैं पब्लिक के अंदर. इसके लिए आपको नहीं लगता कि होराइजन के ऊपर बहुत खौफनाक पैमाने के ऊपर ये मसला बनने वाला है, बिकॉज नाउ यू सी इट हैपनिंग टू पब्लिक फिगर्स एंड प्राइवेट फिगर्स. यानी इट्स नॉट जस्ट कि कोई सेलिब्रिटीज़ की, दिस इज ऑलवेज बिन लाइक अ वॉयरिस्टिक डिमांड के सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ में झांक के देखना, बट अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी हो रहा है ऑनलाइन, और ये बिकती है. यानी पीपल सेल प्राइवेट सेक्सुअल कंटेंट, लोगों की तस्वीरें लीक कर देना, वीडियोस लीक कर देना, लोगों की टेक्स्ट मैसेजेस लीक कर देना, ऑनलाइन फोरम्स बने में वेयर यू कैन गो एंड बाय दीज एंड यू कैन शेयर दीज, एंड उनका कंपेंडियम बनाना. इसकी तरफ FIA के साथ have you looked towards this? Is this not something that you guys have dealt with yet? I have dealt with some FIA wow. cases actually, because जो domestic violence के cases थे, उन एक केस में एक औरत ने अपने शौहर की वीडियो बनाई of him cheating on her, because वो उसकी पूरी फैमिली उसको मान ही नहीं रही थी कि ये हो रहा है. Okay. तो उसने वीडियो बनाई सिर्फ अपनी मदर इन लॉ को दिखाने के लिए. उन्होंने उसके खिलाफ FIA का केस कर दिया कि आपने ये वीडियो डिसेमिनेट की है मदर इन लॉ को. सो जैसे आपका कानून अब्यूज़ हो रहा है, द रियल पर्पस ऑफ द कानून इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड. रियल पर्पस ये है ना कि आप किसी के खिलाफ उनकी राज़ी होने के बगैर आप उनकी वीडियोस लीक करें. दैट्स द पर्पस. इट्स नॉट कि कोई औरत अपने सास को प्रूव करना चाह रही है कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी एंड यू यूज़ इट अगेंस्ट देम. सो Did she get out of it? बच के FIA वाला? No, it's continuing case, but FIA वाला केस चल रहा है अभी भी? FIA वाला चल रहा है, and FIA in general is not very cooperative. I've heard बड़े सख्त गिर और जालिम किस्म के होते हैं, where they're like अब बस, because FIA से लोग बहुत डरते हैं. and I don't know how much, like I guess कानून के साथ चलना एक बात होती है, फिर अपना चलाना एक और बात होती है. FIA बहुत पोलिटिसाइज्ड इदारा है ना, बिकॉज वो साइबर क्राइम के चक्कर में एक्चुअली तो वो स्पीच की पुलिसिंग करनी होती है. तो आई थिंक कि इन सेक्सुअल क्राइम्स में उसका मिसयूज़ होना तो इट्स नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ रीजनेबिलिटी. आई थिंक CCTV कैमराज वगैरह एटलीस्ट पब्लिक स्पेसेस में जहाँ के औरतें काम करने जा रही हैं, राइट, एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ वुमन कि जब मैं काम पे जाऊँगी कोई मुझे छेड़ेगा नहीं, कोई मुझसे वायलेंटली बोलेगा नहीं. ऐसी पब्लिक स्पेसेस में CCTVs होना आई थिंक लाजमी है, ताकि एटलीस्ट द वुमन नोज़ कि मैं जब काम पे जाऊँगी मैं ठीक होंगी. घर में अलहदा बात है ऑब्वियसली. इफ़ समवन इज़ हाइडिंग एंड पुटिंग अ CCTV इन योर रूम, आई एम नॉट
that is very wrong. उसको No, नहीं but होना वैसे चाहिए. it's a legal moral question. That woman recording her husband, isn't that also a crime वैसे? To invade someone's privacy like that? So if you're taking a video of your husband, I legally speaking, firstly, she didn't do it within Pakistan. So there was applicable laws that applied, not Pakistani laws. So then the question becomes that can you take a video of your husband doing something? It depends on the law of the country. And in that law of that country, she Right, could. so ये एक डिबेट है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई भी पाकिस्तान में. अभी कानून का ध्यान ही नहीं इस तरफ किया. And if you're using something for evidentiary purposes in a case only, not for dissemination, it's जी. very different. Right. Would that be admissible in court? Privately shot video? Yes. If it's Is it? अच्छा, infidelity के केस में भी. infidelity के cases is like मुकाम पे पहुंचते नहीं है, but I think for custody cases etc. you can prove कि his character is flawed. irresponsible parent है, ये इनका character flawed है, right? अब ये evidence चले. है तो ग्रे एरिया, बट FIA का I'm sure attitude इतना nuanced नहीं होगा. वो बड़ा मतलब वो बड़े सख्त हाथ के साथ हैम फिस्टेड तरीके से डील करते हैं. आई मीन फुल सर्कल आती है कि जहाँ आपने कहा CCTV होनी चाहिए पब्लिक स्पेस में, तो प्राइवेट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह यूसीपी कह रहा हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का केस हुआ वो, अब वो तो बड़ा अच्छा प्राइवेट स्कूल है, मतलब हर फैसिलिटी है, CCTV है वहाँ पे. यानी इस तरह के केसेस में विद ऑल द टेक्नोलॉजी एंड विद द स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड विद पब्लिक अवेयरनेस इट वेंट नोवेयर. Like, what does that make you? Does that make you like depressed? Does that make you hopeless? Or do you think it was, something beyond jo could have been resolved with just the technology? I think पुलिस को ये सवाल उठाने चाहिए कि वो CCTV फुटेज कहाँ है, क्यों नहीं मिली हमें. This is definitely the job of the police investigation. And एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की CCTV फुटेज है, बट एक फुटेज होती है जो कि नॉर्मल स्ट्रीट कैमरास की होती है. और जो भी मेरे अबडक्शन के केसेस होते हैं, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल से ट्विटर पे फुटेज मांगती हूँ और वो मुझे भेज भी देते हैं अपने CCTV फुटेज से. तो अगर एक आम औरत ऑब्टेन कर सकती है, तो पुलिस तो डेफिनेटली जाके वहाँ हर घर से ऑब्टेन कर सकती है. क्योंकि जिस टाइम पे वो अलेजिडली एम्बुलेंस बुलाई गई थी, CCTV फुटेज शुड शो फ्रॉम प्राइवेट कैमरास इफ दैट एम्बुलेंस केम and if an ambulance left. So this is very easily resolvable through technology if you want to resolve it. And then there's also this element of कि हमने पहले भी ये बात की थी कि किसी भी स्टूडेंट ने आके नहीं कहा कि ये है विक्टिम का नाम, किसी भी स्टूडेंट ने anonymously भी नहीं कहा. बहुत लोग जर्नलिस्ट, मेरी टीम ऑन द ग्राउंड भी गई है, बहुत स्टूडेंट से बात की है, कोई भी नाम देने को तैयार नहीं था. अब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं हुआ, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हुआ होता, उस बस को नैरो डाउन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं. देयर कैन बी वेज टू फाइंड आउट. एनोनिमसली रिपोर्ट हो सकता है विदाउट ट्रैकिंग थ्रू यूजिंग अ VPN इन द टाइम इट वाज वर्किंग. सो some VPN still work by the way. yeah, वो मसला mine कि works. हराम है लेकिन Express works. So Express VPN is pretty good. So there are ways, but in the sense that I'm not depressed. I was depressed at the time. I was very upset, and I was very upset with the response people were giving to the case in terms of the victim who's been raped potentially is the one whose izzat is affected, which is not true as we've discussed earlier. But I was also happy to see that these students came out and spoke up. Now I don't know whether sometimes the speaking up is misguided or not, but they came out, which means that people are यानी बाहर आना ही बड़ी बात है बच्चों के लिए. एक ज़माना था जब बच्चे इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया करते थे. and which is amazing to Which is mobilize mobilize. across the province. I thought that was wonderful. So not fully depressed. अब what about the response? उनकी जो पिटाई हो गई बच्चों की. Yeah, that's not acceptable. That's absolutely not acceptable. And I think यही मसला होता है मेरे पुलिस के साथ जो मैं फेस करती हूँ कि जब आप पुलिस को सर्टन सिनारियोज में ब्रूटैलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर आप उसी ही पुलिस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जस्टिस दें. एक जेंटल हैंड के साथ डील करें, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल. तो नहीं पॉसिबल ना. यू कैन ट्रेन द पुलिस फॉर वन थिंग. यानी मतलब वो आयरिश कॉन्स्टेबलरी तैयार कर रहे हैं आपके, आयरलैंड की पॉपुलेशन बड़ी ख़तरनाक है, उसको कंट्रोल करना है, या आपने वो बॉबी तैयार करना है लंदन का जो मतलब सिटी और उस पर सिर्फ बैटन है.
और वो सीटी मारता है तो लोग जो हैं उसकी बात सुन लेते हैं, या वो एक ऑप्रेसर है या वो एक एड है अवाम का, दोनों चीज़ें वो नहीं कर सकता। या तो अगर राइट पुलिस कोई अलग फोर्स हो पूरी, यू नो, इट्स द सेम गाइस, यानी द गाय जो प्रोटेस्ट में बच्चों को कुट रहा है उसी ने अगली शाम यू नो किसी FIR के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना है। तो मतलब उनकी खुद मेंटल हेल्थ कहाँ होगी अल्लाह बेहतर जानता है कि यू नो जिस किस्म का ट्रॉमा उनको होता होगा, PTSD होता होगा, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर कितने मसाइल आते हैं। पुलिस वालों से अगर आपकी इंटरेक्शन हो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने मेंटली बेचारे डिस्टर्ब्ड होते हैं। सारी बात है कि इंसानों को डे इन डे आउट कुटना, मारना, पीटना, ये मतलब ह्यूमन बींग्स आर नॉट बिल्ट फॉर दिस, और वो साइकी को डैमेज कर देता है। आई थिंक वी एक्सटेंसिवली कवर्ड अ लॉट ऑफ द इश्यूज जो होराइजन पे हैं, एंड सम ऑफ द इश्यूज दैट वुमेन आर फेसिंग ऑलरेडी इन पाकिस्तान। देयर इज वन पर्टिकुलर इशू जिसके बारे में आप पर्सनली बहुत सेंसिटिव हैं, which is the environment, which is the smog issue these days. And we have, अगर हम कैमरे में आ रहे हैं, we have 2 air purifiers and we have a device. Yes. What is this device called? It's called the Aero Tube, and it checks my exposure. No, the Atmo Tube. So it checks my exposure to air pollution, and right now it's blue, which means that the air in here is really good. Really good, guys. एक तो पहले तो a big hand for Yon guys. हमने we cleaned the room. And very few places are very blue when I go. So. Thank you very much. And दूसरा, you showed up, like we had one set up air purifier आपके लिए, but you also showed up with another one, which was adorable because like you're like women's rights और ये मेरा air purifier है, but आपने थोड़ा सा मुझे educate भी किया इसके बारे में. I had no idea कि इतना खौफनाक है. Can you like tell us some of the stuff you were telling me about कि formaldehyde है हवा के अंदर, and human beings ने कभी recorded history में ये witness नहीं किया. ये मुझे नहीं पता था, by the way. I'm very serious. And I think generally perceptions जो पंजाब में हैं यही हैं कि मतलब ठंड का मौसम हो गया है, पकौड़े खाएं, विंडोज़ खोलें, ठंडे मौसम में बैठ के चाय पिएं. अब ये बाहर फॉग नहीं है. दिस इज़ वॉलेटाइल कॉम्पाउंड्स. तो जो मेरी जो डिवाइस है, जो कि आई डिडंट नो, मेरी डिवाइस पिछले हफ्ते पहुंची है. इससे पहले मुझे लगा कि PM 2.5 जो कि हमारी एयर प्योरीफायर्स मेजर करती हैं, दैट इज़ इनफ. अब लाहौर के एटमॉस्फेयर में PM 2.5 से आगे बढ़ के वॉलेटाइल organic compounds, that's VOX, and उसके साथ formaldehyde and other compounds are showing up on my device specifically. So there's never been VOX or VO2 within the atmosphere in the past. I haven't had a tracking device. But जो PM 2.5 भी है, ये air purifiers PM 10 को नहीं trap करते, which is bigger particles, so it should, नहीं करते. तो there's a whole very strange thing happening within Punjab, and I think हमारे जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हेल्थ इफ़ेक्ट्स इसके लॉन्ग टर्म है, राइट. लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी 10 साल कम हो जाएगी. इसका तो आपको आज नहीं पता चल रहा, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उनका नहीं पता कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि दुनिया ने कभी 2400 2800 एयर क्वालिटी देखी नहीं है. रिकॉर्डेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तारीख में हमें नहीं पता इससे ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो इस वक्त इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है. पाकिस्तानी पंजाब. सो इंडियन पंजाब में एयर पोल्यूशन 2000 तक नहीं गई. सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में मुल्तान और लाहौर में 2500 28 तक गई है. नॉट टू से कि 2000 इज मच बेटर, बिकॉज बट विंड पैटर्न्स जो हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं और फिर अब दूसरी तरफ जाते हैं. बट जो आपका स्टैंडर्ड बन गया है 300 का इज़ नॉर्मल, दिस इज़ हैजर्डस. And I was speaking to various doctors about this, and gynecologists कह रहे हैं कि बच्चों के जो placenta है that the baby develops in are getting compromised and they're developing cysts within them. So the effect, long term जो effects बच्चों पे पड़ेंगे उनके. And cysts, by the way, audience के लिए are benign cancers, by the way. They can potentially turn cancerous. And then फिर आपकी जो brain अगर आपका placenta alter हो गया है, that means blood flow is being altered. So globally जो भी studies हुई हैं smog पे, they say कि they affect the brain development of the baby because the baby is basically getting exposed to 80 cigarettes in one day. So Lahore at 2000 is 80 cigarettes in one day. Lahore at 1000 is 40 cigarettes in one day. So you're basically exposing your baby to a smoking mother for the entirety of the pregnancy. And I mean, given that 6 million kids are born in Pakistan every year, last year 6 million children were born, you can imagine Lahore में कितनी
बर्थ्स हो रही होंगी. Right. So if the IQ sharply drops 10 सालों में, no wonder why. And you will probably start seeing physical and brain And deformities. mental abnormalities, जी. And there's a lot of, and the private universities are objecting कि हमें buses नहीं करनी because the government is mandating buses. But I would say this is the only way forward because our vehicle fuel is substandard. So and one not of the tested. one of the solutions जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा public transport हो जाए. और अच्छे फ्यूल के साथ या इलेक्ट्रिक बसेस हों या हम तो यूरो 2 भी नहीं इस्तेमाल करते. हम एक पोलूटेड मिक्स ऑफ यूरो 2 एंड इरेनियन कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि टेस्ट नहीं होती. दुनिया यूरो 5 से लेके इलेक्ट्रिक पे पहुंच गई है. एंड यूरो 5 इज़ 50,000 times less polluting than यूरो 2. जी. So we are using a mix of a substandard fuel with other compounds and it's not tested. मैं तो कहता हूँ leaded fuel वापस लेके आए. वो lead जो है बच्चों को बड़ा वो तवानाई दे रहा था. I feel like back in the day बच्चे बड़े ताकतवर हो रहे थे. Are you working with the government on this as well? I am trying, yes. I'm working with them in different sort of pockets. So we're trying to again start an awareness campaign on smog ताकि लोगों को पता चले smog कोई मजाक नहीं है. It's a really serious issue. You might not feel it today, but you'll see it tomorrow. I went to a restaurant तो बाहर लोग सहन में बैठ के खा रहे थे with their little babies and old aunties and uncles. तो Parks भी भरे हुए हैं. मैं हैरान था. I mean, not to say कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं, फिर ये भी सवाल बनता है कि they're going to do something with their lives. But ये अगर आपका एक क्लाइमेट इमरजेंसी हो रही है, कोविड में आपने बंद कर दिए थे ना रेस्टोरेंट्स, जी. तो आई थिंक मतलब लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए. जब स्मॉग क्वालिटी इतनी ऊंची हो, मैं भी सीधा ऑफिस से लेके घर जाती हूँ एंड आई रिड्यूस एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग बिकॉज इट्स अबाउट सर्वाइवल एंड बीइंग हेल्थी. एंड आप गवर्नमेंट ने कोविड में किए हैं ना मेजर्स, तो आप अपनी पॉपुलेशन को 64,000 केसेस ऑफ पिंक आई इन लाहौर लास्ट मंथ. जी जी जी. बहुत ज़्यादा हो रही है. लोगों को जलन, आँख, पिंक आई वो जो होता है अशोब चश्म कहते हैं ना उसे उर्दू में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया. और बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ICUs भरे हुए हैं. अस्थमा, निमोनिया. ये शॉर्ट टर्म है, बट आपकी लॉन्ग टर्म जिंदगी का बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होगी ना हेल्थ. वी डोंट नो ब्रोंकाइटिस वगैरह जो होते हैं. और वी डोंट नो कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, आपको निमोनिया क्रॉनिकली डेवलप हो जाए, आपको वेरियस इलनेसेस डेवलप हो जाए, कैंसर ड्यू टू म्यूटेशन. मैं बाय द वे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि यू डू ऑल ऑफ दिस कम्प्लीटली वॉलंटियरली. जो आप गवर्नमेंट साथ काम कर रही हैं, चाहे वो स्मॉग का हो, चाहे वो women's rights का हो, तो like nobody start up with the ये गवर्नमेंट का हिस्सा है or whatever. नहीं, मैं ये करती हूँ क्योंकि मैं पंजाब को बेहतर करना चाह रही हूँ. So Inshallah. that's what the goal is. So नहीं, you've been a great sport. You've given us a lot of time. अगर ऑडियंस से कुछ सवाल होंगे, inshallah we'll ask you and then we'll force you to come back a second time so that you can address them. Is there any way they can reach out to, वो start में भी हम display कर देंगे. अगर if खातून कोई देख रही है इसको जी, तो उसको वो यानी आपके वो क्रेडेंशियल्स आप बता दीजिए कि क्या तफसील है सो उसकी. आप 03331144 001 पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं. और हमारा पेज भी है इंस्टाग्राम पे, she/her_Pakistan, that's how it's written, but शहर. एंड आप उस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं. we're available on all social we'll media. have all of these things displayed here inshallah and we'll cut this one out separately ताकि लोग देख भी सकें. Amna, you've been great. Thank you so for much. having me. Thank you so much. Assalamu alaikum.